this is the unit number 14, and the unit number 15 we will be going to discuss, and if we'll have the time we'll go to the next unit 2. So this is about the food storage. Okay, so you know that whenever you store the food, because it's a spoilage kind of a item, obviously, that has a limited shelf life. And if you have this is quite common, that if you have a moisture in that, okay, the dried ones, they can actually they can be stored for a longer time. They have a shelf life, more shelf life. But if you have a moisture, the amount of the water or the moisture or the content would be more, the spoilage or the of that food item would be more. Okay, and if you cook that, that can stay for a longer time. And if you use the fridge, then it can actually, obviously the temperature difference, at the higher temperature you can save the things, and the lower temperature you can save the things. Okay, but at the room temperatures and all, if you don't want to, if you don't store at a variation in the temperatures, then it would be getting the chances of the getting spoiled the food items would be more. So what kind of the things would be are able to spoil? Okay, so the main things which have the capacity of the food items to spoil, the major causes of the food spoilage we will be going to study in this, and the major affecting factors which affect the food spoilage. Ek to causes and the factors which affect. Okay, and the classification on the food base, the perishability classification इनकी करेंगे, and then the food storage methods and organization of the storage space को कैसे करना. Obviously whenever you want to store the things, so you have to be you have to see the storage also, because in the fridge also, or in the dry storage also, or in the -20, -80 storage also. So you really need to be look after those the spaces also, because you cannot just store as such as you can. Okay, so just wait. Okay, so the storage capacity of the and the proper storage, obviously, if we'll so we have to see the different kind of the foods. Okay, the food spoilage is main, the definition of this food spoilage is the quality of the food item measured in terms of this sensory properties. What do you mean by the sensory properties? Because the sensory properties, they actually come in contact with, like, you, when you use your sensory organs, okay, for the sight, whenever you want to see that the things would they seems to be very good in looking at the food. Okay, and the smell, obviously whenever the things they get spoiled, and the smell would be going to change, and the touch also, and the taste also. Obviously when the smell and the sight changes from the normal, and then it would be going to change the touch and the taste. Definitely the taste, when smell changes now, the taste would also be going to change. Okay, so the sensory property, sensory word is just used whenever we actually use our sensory organs, like the eyes, tongue and the nose. These organs, they are the sensory organs, because they can sense the smell and other things also. So that's why they are called the sensory properties. Okay, so whenever the food's sensory properties would be changed, so the food spoilage would be you can actually imagine that the food spoilage has been started. Okay, तो ये वाली चीजें जो हैं कि अगर आपका सेंसरी ऑर्गन्स आपके नोज, throat, mouth and tail, मतलब the tongue, nose and the eye स्मेलिंग प्रॉपर्टीज अगर चेंज हो जाती हैं, तो आपको देखना चाहिए सेंसरी ऑर्गन्स की कि वो फूड की स्पॉइलेज अब शुरू हो गई है, फूड का खराब होना शुरू हो गया है. ओके, सो इन चीज़ों को लेके तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले अगर आप साइट देखोगे तो उसका अपीयरेंस, टेक्सचर चेंज हो जाएगा. ठीक है, स्मेल करोगे तो भी टेक्सचर चेंज हो जाएगा, और खा के देखोगे, टच करोगे तो भी उसका फ्लेवर एंड ऑल चेंज हो जाएगा, टेस्ट करोगे तो अरोमा भी चेंज हो जाएगा. ठीक है, एंड मतलब साइट, स्मेल, टच एंड टेस्ट, दीज 4 words
are used for the sensory properties whenever you would be like looking for the spoilage of the food. And then what they can actually check, they have to check the appearance, texture, flavor and aroma. ये चार words बहुत important है. Sight, smell, touch and taste, appearance, texture, flavor and aroma. Okay, and the quality of the food item is measured in terms of the sensory properties. With sensory properties, sight, smell, touch and taste, and they can actually change the appearance, texture, flavor and aroma. Okay, so 3 other important quality factors which cannot be judged by our senses alone. इसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे कि हमें देखने में यही 4 चीजें और यही 4 चीजें देखने में और स्मेल करने में चेंजेस होंगे, लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा खा के भी देखें तो टेस्ट में फर्क आ जाएगा, सब कुछ फर्क आ जाएगा, बट स्टिल जो हम नहीं देख सकते वो हम उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटीज, न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज नहीं देख पाएंगे. ठीक है, तो उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अब मे और मे नॉट बी, द न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज मे और मे नॉट बी चेंज्ड, पर ज्यादातर चेंज ही होती हैं. बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस होंगे जहां चेंज शायद ना हो, बट आई हैवंट सीन एनी फूड जिसमें सेंसरी प्रॉपर्टीज चेंज होने पे न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज, एंड वी आर मच मोर कंसर्न्ड अबाउट द न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज. सो इफ यू रियली वांटेड टू सेव द न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज तो आपको उसका साइट, स्मेल, टच एंड टेस्ट, अपीयरेंस, टेक्सचर, फ्लेवर एंड अरोमा, इन सारी चीजों को intact रखना होगा. Only then we can provide the nutrition to the person who is eating that food. I'm not talking about any particular kind of a food. We will be going to classify the food items, and then we will be going to learn about the which kind of a food can spoil which with which kind of a thing. Maybe temperature, maybe concentration, maybe different reasons could be there. Okay, so इन चीजों को अगर आपने देखना है तो अगर आप देखोगे कि ये सारी चीजें हम चेक कर रहे हैं बट न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी हम नहीं चेक कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि न्यूट्रिशनल वैल्यू, सेफ्टी एंड शेल्फ लाइफ, हमें उसकी बिल्कुल चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा. तभी तो पैकेट्स पे अगर हम पैकेज्ड फूड भी लेते हैं मार्केट से, देन आल्सो इट्स मेंशन. पर जब हम घर में बनाते हैं ना, दैट फूड इज आल्सो हैविंग सम काइंड ऑफ अ प्रॉपर्टीज. ऑब्वियसली दिस काइंड ऑफ अ प्रॉपर्टीज जो उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज हमें पता ही है कि अचार या ड्राई, देखो ड्राई दालें हम रख सकते हैं स्टोर करके आराम से, बट जो कुक फूड होता है वी हैव टू स्टोर इन अ फ्रिज ओनली, सो दैट वी कैन एक्चुअली we actually wanted to make sure that the quality of the nutrition which we have made and which we want from that particular food item, that should not changed. Okay, तो वो चेंज ना हो इसलिए हमें वो मेक श्योर करनी पड़ती है. अब फुलके हैं या वही बात हो जाती है जिसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है, वाटर कंटेंट होता है. जितनी ड्राई चीजें होंगी तो शेल्फ लाइफ भी रह जाएंगी. फ्रूट्स में भी होगा तो वो एक आधा दिन बाहर रहेंगे, देन यू हैव टू पुट इट टू अ फ्रिज, और लाते सारी फ्रिज में रखो. तो टेम्परेचर का बहुत इफेक्ट होता है. ठीक है, एक चीज तो हमें पता ही है, दिस इज अ वेरी कॉमन सेंस कि टेम्परेचर का इफेक्ट होता ही होता है. ठीक है, एनी एडवर्स चेंज इन द फूड क्वालिटी इज एज डिफाइंड अबव कंसिडर्ड द स्पॉइलेज एंड डिटीरियोरेशन. देखो इससे क्या है कि हमारी जो थोड़ी सी टेक्सचर एंड ऑल, लेकिन इसके अलावा भी अगर बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाती हैं जैसे फंगस, एल्गी, है ना, ये सारी चीजें लगेंगी तो इसका बहुत ही फिर न्यूट्रिशनल क्वालिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है. एंड देन मोर ओवर द चांसेस ऑफ द फूड पॉइजनिंग एंड ऑल ये भी बढ़ जाते हैं अगर हम ऐसा फूड खा भी लेते हैं. ये नहीं कि बहुत ज्यादा खाएं, इवन इफ यू हैव अ लिटिल बिट, बहुत थोड़ा, एक बाइट से भी बहुत थोड़ा, इवन थोड़ा सा भी चला जाता है, इवन हाथ भी वहां लगे हैं उससे अगर हम खाते हैं, देन ऑल्सो द चांसेस ऑफ दोज बैक्टीरियल फंक्शंस, इन्फेक्शन, सॉरी, तो because bacteria harmful bacteria start working in your body, so they would be the chances of the nutritional quality deterioration is there, and moreover the chances of getting the harmful infections, stomach infections, intestinal infections, gastric troubles होने के chances भी बहुत बढ़ जाते हैं. ठीक है, so in this sense से हमें क्या है कि if they फूड जो है ना, जो टाइम होता है उनका, ये भी बहुत हमें देखना पड़ता है. सो वी एक्चुअली टॉक अबाउट द सीजनल फूड्स आल्सो. जो सीजन होता है उसमें वो चीज़ें ठीक रहती हैं. अगर सीजन निकल जाता है तो उसके बाद उनको सेव करके रखना, उनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बरकरार करना और मेंटेन करके रखना, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. ओके, सो एट द टाइम दे आर जो भी फूड्स हैं, एट द टाइम दे आर हार्वेस्टेड एंड देन स्लॉटर्ड, और देन दे आर मैन्युफैक्चर्ड, और प्रोग्रेसिव डिटीरियोरेशन भी होनी शुरू हो जाती है. इट डिपेंड्स अपॉन द फूड आल्सो. अगर आप देखो सीजनल फ्रूट्स की बात करें तो नॉन सीजनल फ्रूट्स जो होते हैं उनकी स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज एंड ऑल, उसमें भी उनकी न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज
न्यूट्रिशनल कंटेंट पूरा रहता है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क होता है। काफी हद तक रह सकता है, बट वो उनकी शेप, अरोमा में भी चेंजेस आ जाती हैं। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। इवन इफ यू गो टू कनाडा ना, आई वेंट टू कनाडा एंड देन वहाँ पे क्या था कि यहाँ से जो नाशपतियाँ बब्बू गोशास जाते हैं ना वहाँ पे, तो यहाँ पे तो बड़ी अच्छी खुशबू होती है, इवन मैंगोज की भी खुशबू होती है, लेकिन क्या होता है कि वहाँ कुछ ऐसा होता नहीं है। एंड देन द कोल्ड स्टोरेज में सारा स्टोर्ड रहता है, मैंगोज अवेलेबल हैं, फ्रूट्स अवेलेबल हैं, बट दो उनका टेक्सचर होता है वो चेंज हो जाता है, वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं एंड अरोमा तो बचती ही नहीं है। यहाँ पे तो मैंगोज की रेडी के पास से आप निकल जाओ ना यहाँ पे, तो यू विल हैव अ गुड फ्रेग्रेंस। बट अगर आप कोल्ड स्टोरेज वाले, काफी दिनों के स्टोर्ड वाले, इवन इफ यू पुट इनटू अ फ्रिज ना, देन ऑल्सो क्या होता है, then also we don't have that aroma, ठीक है। just wait for something. So the spoilage, sorry for the inconvenience. फूड की क्वालिटी पे बहुत फर्क पड़ता है, और आई मीन उसकी एस्थेटिक मतलब उसकी शेप और उसकी क्वालिटीज, जैसे वो इंटैक्ट होती है ना, जो फ्रेश फूड होता है उसके बाहर का टेक्सचर भी चेंज हो जाता है, ठीक है। और जो उसकी क्वालिटी होती है ना, जैसे अब मैं बताती हूँ आपको, एक कोल्ड स्टोरेज वाले आप खा के देखो कभी, जो बहुत ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज में रहते हैं ना, जब आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाके खाते हो ना, तो जो बब्बू गोशा है ना, वो पहले बड़ा एक टेक्सचर होगा, उसको आप चाकू से काटोगे भी, देन ऑल्सो यू विल फील कि उसमें कोई फ्रेशनेस है, थोड़ी सी हार्डनेस है। बट जब आप उसको वैसे बहुत महीना 2-2 महीने के जो स्टोर्ड पेयर वाले होते हैं ना, देन वो बिल्कुल ही सॉफ्ट बॉइल्ड पोटैटोज की तरह होते हैं, ना कोई खुशबू होती है, ना कोई उसमें टेस्ट भी बचा होता है। तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि उसमें न्यूट्रिशन कहाँ से बचा होगा, ठीक है। सो ये स्टोरेज वाला जो एक क्वेश्चन, अब मैं जो ये चैप्टर्स पढ़ाती हूँ ना, ये जो मैंने 4 लाइनें बोली है ना, ये क्वेश्चंस आते हैं और आपको एज सच ही वर्ड्स में लिखना है। साइट, स्मेल, टच एंड टेस्ट एंड अपीयरेंस, टेक्सचर, फ्लेवर एंड अरोमा, एंड देन न्यूट्रिशनल वैल्यू में क्या है, न्यूट्रिशनल वैल्यू, सेफ्टी एंड द शेल्फ लाइफ में उसका लिखना है, एंड डिटीरियोरेशन मीन्स इज स्पॉइलेज। ये ही वर्ड्स आपने पेपर में जब आंसर्स लिखने हैं, या आप जो आप असाइनमेंट्स बना रहे हैं, जब आप उसमें ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे ना, तो देन यू विल बी गोइंग टू लर्न, एंड देन यू विल बी लाइक गोइंग टू क्या कहते हैं उसको, आई मीन राइट दैट प्रॉपरली। ये वर्ड्स यूज करके लिखोगे ना, तो जो आपका इम्पैक्ट है ना, गिविंग द आंसर्स एंड ऑल, वो सारा बहुत मैटर करता है इन चीज़ों से, rather than using the common languages and all. Okay, and now the spoilage of the food, of its appearance, texture, taste and aroma, ये ना सारे के सारे, and along with its nutritive value। अब 5वीं पॉइंट फिर ऐड हो गया। पहले हम बात कर रहे थे appearance, texture, taste and aroma का, अब now the value which is called the nutritive value। Okay, this is also, and it may still acceptable something to eat uncertain circumstances। पता क्या होता है कि sometimes availability नहीं होती है फूड की, तो uncertain circumstances में अगर हमें ऐसा फूड यूज करना पड़ता है, तो we don't think that the much of the nutritive values would be provided, okay, at that time, and the spoilage renders the food unsafe to eat, ठीक है। अब ये सीधी सी बात है कि जब हम इन चीज़ों की, ये जो 5 प्रॉपर्टीज मैंने बताई हैं, इसकी अगर चेंजेस आप एक्सपेक्ट करोगे, देन वी कैन एक्चुअली एक्सपेक्ट कि हम अनसेफ फूड खा रहे हैं। अनसेफ इन द सेंस कि हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस, गैस्ट्रिक ट्रबल होने के चांसेस भी हो सकते हैं,
बट न्यूट्रिशन का तो बिल्कुल जीरो है, ठीक है। न्यूट्रिशन तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं ऐसे फूड से जिसमें ये चेंजेस आ गई हैं इन टर्म्स ऑफ दीज 5 words. So जब आप स्पिलेज की बात करेंगे then you have to use these words, okay. The causes of the food spoilage का मतलब है the major causes of the food spoilage are the microorganisms. major कौन होते हैं? एक होते हैं microorganisms and the natural enzymes, ठीक है। दो तरह के होते हैं। अब आप बातें करेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको सीधा सीधा समझ आता है कि यस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। जब वो बड़ा होगा तो ऑब्वियसली द बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे है ना वायरसेस, कोई भी उसके ऊपर ग्रो कर सकता है विच they actually start using that fruit or the food item as a host मतलब वो उस पे सर्वाइव करेंगे और वो उसको खाना शुरू करेंगे ऑब्वियसली। बट वो जब खाना शुरू करेंगे दे विल स्टार्ट ग्रोइंग ऑन दैट। बट अगर हम वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाला फूड विल बी गोइंग टू ईट then they'll be like they'll also go inside us and then they'll definitely cause the problem to our gastric systems, okay. So वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थ्रू फूड जाएंगे, जबकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को तो एक लाइफ सिस्टम मिला था ना, ठीक है। जो फूड आपका अवेलेबल हो गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, किसी भी तरह को वेराइटी काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। दिस इज अ कॉमन वर्ड कि माइक्रो मींस छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स उस फूड के ऊपर ग्रो करते हैं, क्योंकि वो फूड उनके लिए एज ए हॉस्ट काम करता है और उससे उनको चीजें मिल रही हैं ग्रो करने के लिए। ऑब्वियसली उनके लिए न्यूट्रिशन अवेलेबल हो गया, उनके लिए एक कल्चर मीडियम अवेलेबल हो गया। कल्चर होता है जिसके ऊपर ग्रो करते हैं, तो जब वो उसके ऊपर ग्रो करेंगे तो वो ग्रो करेंगे और वो नंबर में भी ज्यादा डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। दे विल बी ग्रोइंग इन द नंबर्स टू, बहुत नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और बाई चांस हमें तो वो दिखने, क्योंकि दे आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वी कैन नॉट सी विद द नेकेड आईज, ओके। So we cannot see with the naked eyes, and then if we'll consume in uncertain, हमने बात की ना uncertain circumstances, मतलब sometimes if the food availability is not there, only that kind of a food storage या फिर थोड़े दिन पुराना food पड़ा है हमें वो खाना पड़ जाता है। Suppose sometimes हम होते हुए भी खा लेते हैं, कई बार हमें नहीं पता चलता, ठीक है, but you should avoid. But sometimes in uncertain circumstances, if we want to consume, if we had to consume that food, okay, so those microorganisms they'll go inside us and then the more host, हमारा body जो है वो भी उनके लिए host बन जाएगी, ठीक है। and then they'll start growing over there also, तो वो इस system को अपना तो grow होना शुरू हो जाएंगे microorganisms, हाँ, ठीक है। तो क्योंकि हमारी body भी उनके लिए host बन जाएगी, so लेकिन वो इतने ग्रो कर जाएंगे कि हमें फूड पॉइजनिंग एंड ऑल, हमारे सिस्टम को खराब कर देंगे, जो हमारा नॉर्मल फ्लोरा होगा उसको खराब कर देंगे। मोर ओवर सो उनको ग्रो करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। मतलब ग्रो करने में उनको दिक्कत नहीं, मतलब माइक्रो बैक्टीरिया वुड बी ग्रोइंग एंड देन हमारे न्यूट्रिशन में हमारे जो माइक्रो फ्लोरा होगा उसको ग्रो करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम है वो इसलिए बिकॉज देयर वुड बी द कंपटीशन बिटवीन द नॉर्मल माइक्रो फ्लोरा एंड द फ्लोरा फ्रॉम द air key, okay, I'll be like putting that fan off, okay, just wait. Okay, hopefully this would help, okay. So ये कंपटीशन जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, जो हमारा नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा होगा, जो आपका नॉर्मल जो बॉडी का नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा होगा और जो बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए हैं, इनमें कंपटीशन आता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें दिक्कत आएगी, ठीक है। तो हमारी बॉडी में एक फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो दो तरह के हैं, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पहले हम करते हैं। दूसरा होता है हमारे नॉर्मल एंजाइम्स। नॉर्मल एंजाइम्स कौन से हैं? देखो, नॉर्मल एंजाइम्स हमारी बॉडी में जो डाइजेशन के लिए हैं, जो मैंने बताया स्टार्टिंग में, बिगनिंग में आई हैव डिस्कस कि मील जो है वो डाइजेस्ट होगा ही नहीं, क्योंकि अगर एंजाइम्स नहीं होंगे, ठीक है। एंड हर एंजाइम का एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होता है। व्हेनेवर वी स्टार्ट गोइंग टू स्टार्ट ईट,
डिफरेंट काइंड ऑफ द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मतलब हम जितना भी बैलेंस फूड है या डिफरेंट काइंड ऑफ हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, लैक्टोज खाते हैं, ग्लूकोज खाते हैं, या फिर लिपिड्स खाते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ द प्रोटीन्स विल गोइंग टू हैव। ओके, तो होगा क्या कि हर एक एंजाइम वुड बी गोइंग टू डाइजेस्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ द प्रोटीन, डिफरेंट काइंड ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड डिफरेंट काइंड ऑफ द फूड आइटम्स, बिकॉज हर किसी के लिए एक डिफरेंट सबस्ट्रेट होगा। ओके, सो ये एंजाइम जब इस तरह का फूड अंदर जाएगा ना, सो बिकॉज दे हैव अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट्स, अब थोड़ा भी खराब हुआ होगा फूड होगा ना तो उसको वो डाइजेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज अब वो नहीं करेंगे तो और इंडाइजेशन होगी, क्योंकि एंजाइम्स की हमारी जो नेचर होती है ना, वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को करने की होती है डाइजेस्ट, ठीक है। लेकिन जब स्पिलेज ऑफ द फूड और स्पॉइलेज ऑफ द फूड हो चुकी होगी ना, तो वो उसका सबस्ट्रेट नहीं बनता, बिकॉज नाउ दैट वुड बी हैविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स इनटू दैट। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे और कुछ होगा तो उसमें वो ग्रो नहीं करेगा, ठीक है, उसमें ग्रो करेगा बट उसमें एंजाइम उसको डाइजेस्ट नहीं करेगा, बिकॉज दैट वुड बी फाइनिंग, क्योंकि एंजाइम का एक सबस्ट्रेट की ना एक एक्टिव साइट होती है, जिसमें हमारे जो टोटल वो जो होता है हमारा एक्टिव साइट पे जो सबस्ट्रेट है उसने बाइंड करना है, तो वो जो बाइंड करेगा ना तो वो प्रॉपरली बाइंड नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसमें और बहुत चीजें हैं विच वॉज अनवांटेड एंड विच वॉज नॉट मेंट फॉर दी digestion by that particular enzymes। okay, substrate चाहे सेम हो, अब क्योंकि अब सबस्ट्रेट में वो नॉर्मल चीजें नहीं बची हैं जो ऑलरेडी उसके नॉर्मल जब न्यूट्रिटिव होता और उसमें कोई माइक्रोबैक्टीरिया ग्रो नहीं किया होता तब होती है, ठीक है। इस बात को आप समझिए अच्छे से कि वो चीजें हमें फिर डाइजेशन में प्रॉब्लम आ गई, पहले तो माइक्रोऑर्गेनिज्म ने सारी चीजों को चेंज कर दिया, इवन द न्यूट्रिटिव वैल्यू को चेंज कर दिया। अब हमें क्या दिक्कत आएगी कि जो एंजाइम्स है अब वो भी जो जिन्होंने डाइजेस्ट करना है उसको वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों चीजों की दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि उसमें एक्चुअली क्या होता है कि सारा का सारा ना एनवायरनमेंट ही चेंज हो जाता है। जो एंजाइम्स होते हैं ना वो बहुत ही पर्टिकुलर होते हैं काम करने के लिए, ठीक है, पर्टिकुलर इन द सेंस कि टेम्परेचर के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, पीएच के लिए, ठीक है, और कंसंट्रेशन के लिए जो सबस्ट्रेट की आ रही है, और स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होना चाहिए जैसा उसको होना चाहिए। अब क्या है कि उसका टेक्सचर, अरोमा एंड ऑल सब कुछ तो चेंज हो गया हुआ है। वो हुआ क्यों है? क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर चुके हैं, अब उसकी नेचर चेंज हो चुकी है, तो वो ये पर्टिकुलर सबस्ट्रेट काम करता भी है, नहीं भी करता है। जो एंजाइम है कुछ उसको डाइजेस्ट करेगा, कुछ उसको नहीं भी करेगा। अगर बहुत ज्यादा स्पॉइलेज हो चुकी है फिर तो बिल्कुल ही नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो थोड़ी बहुत अगर नहीं हुई है तो इसका मतलब कि एक तो हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और वी कैन एक्सपेक्ट कि वो अनडाइजेस्टेड रहेगा, ठीक है, अनडाइजेस्टेड ही रहेगा वो फूड, तो हमारी बॉडी में क्या, एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाएंगे, फूड पॉइजनिंग क्रिएट करेंगे, दूसरा हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा है, तो इससे क्या है कि चीजें और एग्जैजरेट होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो फूड की जो स्पॉइलेज है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द नेचुरल एंजाइम्स, ठीक है, और जो इंसेक्ट्स या रोडेंट्स आल्सो प्ले अ रोल इन द फूड स्पॉइलेज, ये हमें सारा पता है कि ये जो सारे सिंपल चीजें हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नॉर्मल लोगों को नहीं पता होता, बट ये जो इंसेक्ट्स होते हैं और रोडेंट्स होते हैं ना, ये तो ऑब्वियसली ये गंदी जगह पे घूमते हैं, एंड देन इफ दे टच फूड तो उनमें से गंदगी आएगी, उनमें से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड में जाएंगे, एंड देन, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि फूड्स आर नॉर्मली कंटामिनेटेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, इस सॉइल में, वेस्ट में एंड एयर में। अब ये तीन तरह का मीडियम है हमारे आसपास, सॉइल है, वाटर मीडियम है एंड द एयर मीडियम है। अब ये जो कंटेमिनेशन करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर एवरीवेयर, दे सॉइल में भी होते हैं, ये वाटर में भी होते हैं, एयर में भी होते हैं। तो अगर आप सॉइल भी गंदा आपके हाथ लग जाता है या फूड के ऊपर कोई सॉइल लगी हुई है, ऑब्वियसली वी हैव टू क्लीन इट आउट, ठीक है। अब वाटर है, अगर वाटर भी स्टोर्ड है या गंदा है, या कंटेनर गंदा था या गंदा स्टोरेज है, कोई भी रीजन हो सकता है। सो आजकल तो चलो सबके घर में लगे होते हैं प्योरीफायर्स एंड ऑल, ठीक है, तो इन चीजों से वो बचाता है, ठीक है। अदरवाइज यू कैन बॉयल एंड वेरी इजीली, और जो सोर्स है वो अच्छा हो, ठीक है। और एयर में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्योंकि एयर कहीं से भी आ रही है, कहीं गंदगी हवा का क्या है, कहीं से भी आ रही है, ठीक है, और हो सकता है वो कहाँ कहाँ से ट्रेवल करके आ रही है और आपके पास आती है। और हवा में तो देखो, पानी को आप कर सकते हो, सॉइल को कर सकते हो, आप हवा से नहीं बच सकते हो। हवा कहीं से भी आती है, क्योंकि हवा को प्योरीफाई करने के सिस्टम अभी नहीं है। हर घर में अंदर बाहर हवा तो होगी,
वाटर को आप यूज कर सकते हो बॉयल करके एंड ऑल, ठीक है। सॉइल से भी आप क्लीनिंग पानी से कर सकते हो, धो सकते हो और कुक कर सकते हो, ठीक है, उन सब चीजों से बच सकते हो। बट एयरबॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचना ना, इट बिकम्स डिफिकल्ट, और काफी डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज इस चीज से बचना, क्योंकि वो हर जगह है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह है। और फूड आइटम है, अगर जरा भी आपने खुली छोड़ दी है कुकिंग के बाद या वाइल कुकिंग या उसके बाद भी, तो क्या होगा कि उस कंटेनर में भी एयर का टच हो गया और उसमें से एक दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी चले गए, तो विद टाइम, अब डिपेंड करता है कि कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का टच उसको मिल गया और कितनी देर आपने बाहर रखा, कितनी देर उसकी स्टोरेज क्वालिटी को आपने नहीं मेंटेन करा, या फ्रिज में या जहां भी वो उसकी प्रॉपर स्टोरेज होनी चाहिए थी हुई या नहीं हुई। देन तो उससे क्या होता है कि जो एयर में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर वो एक दो भी एंटर कर गए तो उनको एक हॉस्ट मिल गया, जो फूड आइटम्स हैं दे आर होस्ट, तो उनको उनके लिए एक कल्चर मीडियम मिल गया, ठीक है, जिसमें वो ग्रो करना शुरू करेंगे, एंड देन they'll start growing, and then they'll multiply, and then they'll start spoiling that food. Obviously वो grow कर रहे हैं उसको as a culture, तो whenever they'll start growing on that, तो उस कल्चर मीडिया में चेंजेस आ जाएंगे, एंड whenever you'll be having, तो माइक्रोऑर्गेनिज्म साथ चले जाएंगे। ये आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। ये मैंने थोड़ा डिटेल में बताया है, जो 5 वर्ड्स हैं जो मैंने आपको टेक्सचर, अरोमा एंड स्मेल, टच को बताया है, उससे अपीयरेंस में, अरोमा में चेंजेस आती हैं, ठीक है। तो इन चीजों से ज्यादा बचना है। अब सॉइल एंड वाटर की बजाय एयर से आपको ज्यादा बचा के रखना होता है फूड को, ठीक है। एंड एक और क्या होता है कि स्किन ऑफ द कैटल एंड द फेदर्स ऑफ द पोल्ट्री विद इन द इंटेस्टाइन एंड ऑल द कैविटी ऑफ द एनिमल। अब ये कहते हैं कि हर जगह ही एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। सॉइल वाटर एंड एयर की बात हमने कर ली, लेकिन स्किन ऑफ द कैटल की स्किन पे भी, क्योंकि देखो अब कैटल को जो लोग डेयरी फार्मिंग करते हैं वो नहलाते हैं, सब कुछ है, बट स्टिल उनकी स्किन पे अब नाउ आई डोंट वांट टू डिस्कस मच इन डिटेल, यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि उसकी स्किन पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, बिकॉज उनका रहने बैठने का तरीका वही होता है। और जब उनसे मिल्क लिया जाता है तो फिर आप विदाउट बॉइलिंग मिल्क ना, यू शुड नॉट यूज दैट मिल्क, या पास्चराइजेशन करने के लिए, ठीक है। तो स्किन ऑफ द कैटल के ऊपर होता ही है, एंड फेदर्स ऑफ द पोल्ट्री, ऑब्वियसली इफ यू परचेज द एग्स एंड ऑल, और जो लोग क्या है नॉन वेजिटेरियन है एंड ऑल, ठीक है। सो उनकी विद इन द इंटेस्टाइन एंड द कैविटी ऑफ द एनिमल्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि जब जो एनिमल फूड खाते हैं तो उन एनिमल में भी तो फूड खाया होता है ना। अगर आप जब उनकी स्लॉटरिंग की जाती है तो अगर वो इन्फेक्टेड फूड उन्होंने खाया हुआ था तो दैट वुड बी लाइक गोइंग, अगर आप कुक करके भी खा रहे हो then also the chances of those microorganisms to entry into your food, your stomach or the intestine would be more, okay. So ये छोटी छोटी बातें होती है, देखो शुरू कहाँ से होता है और आप कहाँ तक कैसे ये चीजें आपके ऊपर, आपके इंटरनल सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर कर जाती हैं, बिगनिंग फ्रॉम द स्टमक एंड देन द इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन दे कैन इफेक्ट द लिवर ऑल्सो, गॉल ब्लैडर ऑल्सो, इंटेस्टाइनल एंजाइम्स ऑल्सो, लिवर एंजाइम्स ऑल्सो, मतलब सब डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो इन चीजों को अपने स्पॉइलेज कहाँ से शुरू होती है ये आपको ध्यान रखना होता है। पता सबको है, ये इतनी कोई बड़ी बातें नहीं है, बिकॉज दिस इज हैपनिंग इन द जनरल लाइफ, बट अब जब आपने लिखना है तो इसको एक तरीके से आपने लिखना है, ठीक है। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द स्किन ऑफ द पील्स ऑफ द फ्रूट्स ऑल्सो, तभी तो वेजिटेबल्स भी देखो वो भी सॉइल में से उग के आती हैं, कैसे से कैटल्स, कैसे से जानवर घूमते रहे हैं, यू नेवर नो इन द फ्रॉम द फील्ड्स, ओके। तो आपको बहुत अच्छे से पीलिंग ऑफ द फ्रूट्स करनी चाहिए और भिगो के रखना चाहिए। और पेस्टिसाइड्स ऑब्वियसली बड़ी सारी चीजें हैं, अब तो अभी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, बट यू कैन एक्चुअली गेट कंटामिनेटेड विद द those you can say that pesticides also, chemicals also, which the farmers they spray on that। और सबसे बड़ी बात है कि वो कैसे एनिमल्स उसके ऊपर घूमते रहे हैं, क्योंकि ये फील्ड्स हैं, कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। सो वेजिटेबल्स एंड हल ऑफ ग्रेन्स एंड शेल्स ऑफ द नट्स, मतलब आउटर साइड की बात कर रही हूँ, शेल्स ऑफ द नट्स है तो नट को तो तोड़ के ही खाना होता है, ठीक है। और हल ऑफ द ग्रेन्स हैं, जो हस्क होती है बाहर वाली, चलो वो भी हम तोड़ के खाते हैं, उनको छीलना होता है तो वो भी रिमूव हो जाता है, एंड देन आफ्टरवर्ड्स दे कैन वॉश इट आउट। बट फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का हमें ज्यादा ख्याल रखना होता है, क्योंकि उसके ऊपर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, ठीक है। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ और उसकी फिर पीलिंग एंड उनकी वॉशिंग का हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। सो इन चीजों में क्या है कि अब हम ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉमन वर्ड लेके चल रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और बट आपको बताया कि कहाँ कहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, देखो स्किन ऑफ द पील है, वेजिटेबल्स हैं, हल ऑफ द जो ग्रेन्स हैं, शेल ऑफ द नट्स है,
एंड सॉइल से, वाटर से, एयर से, स्किन ऑफ द कैटल से, फेदर ऑफ द पोल्ट्री से, ठीक है, और अगर एनिमल हम फूड खाते हैं तो उनसे, ठीक है, तो उनकी इंटेस्टाइन से भी अगर उन्होंने भी खाया हुआ है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं. सो दे आर ऑन ऑल इक्विपमेंट्स वाइल यूजिंग ऑन दी कुकिंग ऑल्सो. अब ये नहीं है कि हम बाहर से ही, अगर हमारे बर्तन अच्छे से नहीं धुले हुए हैं और धुल के रखे भी हुए हैं, और कोई बर्तन ऐसा है, यूटेंसिल ऐसा है जैसा जो हम बहुत दिनों से यूज नहीं कर रहे हैं, सो अगर हम उसको एज सच यूज करेंगे तो यू नेवर नो कि डस्ट पड़ी हुई थी, बेशक अंदर था, ड्रॉर्स में था, वट एवर, बट द चांसेस ऑफ the some kind of the contamination in any sense, maybe water, एयर के टच में तो आया ही है, वहां पे एयरबोर्न कोई बैक्टीरिया चिपके हुए हों उसके ऊपर, और वाटर जिसे किया था आपने स्पॉइल, सॉरी, वॉश करके पहले रखा था, उस वो शायद में भी क्लीन नहीं था, तो यू हैव टू मेक इट श्योर दैट व्हेनेवर यू आर यूजिंग एनी यूटेंसिल यू हैव टू अगेन क्लीन इट आउट. ओके, सो और दूसरा आपके हैंड्स, स्किन एंड आपकी क्लोथिंग जो हैंडल कर रहा है फूड को, ठीक है, वो स्किन उसकी कैसी है या वो कैसा काम करके आया है, उसके कपड़े गंदे पहन के वो किचन में खाना है तो ऑब्वियसली, एंड देन द हैंडलिंग ऑफ, क्योंकि वो गंदे हाथ, उधर से बर्तन धो रहा है, उधर से ऐसे कर रहा है, सो ऑल दीज थिंग्स. ओके, सो दीज आर द जनरल थिंग्स बट which are very important to be taken care of whenever you are eating food, and then you have to make sure that all the points which I have discussed, so all these points to be taken care of, even the person who is handling the food, who is cooking the food in the kitchen, also the hands of that person, the skin of that person, the clothing of that person also matters a lot, who is cooking the food, and the utensils which is used in the kitchen, so they also make sure that they are also the cleaned one, and the properly cleaned, and the properly storage in the drawers and all. And before cooking the food, if you are really wanted to use those utensils, then make sure again to wash those with a good kind of a soap, and then remove that soap properly, and then only start using them for the cooking methods. Okay, and एंड मतलब, और बैक्टीरियाज जो हैं जिनकी हम बात करते हैं, समटाइम्स इफ वी हैव द नॉन वेज फूड फॉर द नॉन वेजिटेरियन पर्सन्स, सो समटाइम्स हम बहुत फॉर्चुनेट होते हैं अगर हमें हम अनहेल्दी और लिविंग टिश्यूज खा रहे हैं, फ्लैश ऑफ द एनिमल्स एंड जूस ऑफ द प्लांट्स पी रहे हैं, और वो बिल्कुल आउट ऑफ, विदाउट टच ऑफ एनी काइंड ऑफ अ बैक्टीरिया है, सो दैट्स अ वेरी गुड काइंड ऑफ अ, we are very fortunate if we'll get the healthy juices from the fruits and healthy flesh अगर non vegetarian हैं तो खा रहे हैं, ठीक है. तो however they are always present near around the ready invade the flesh and the plants through the break of the skin. Obviously whenever the slaughtering of the animals should be there, so there are chances of the growth of the microbacteria, और अगर कट फ्रूट्स हैं तो उनके ऊपर भी ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया होने के चांसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं. ओके, so all these things we have to take care. Okay, तो juices भी जब हम जितनी जल्दी कहते हैं ना, एक तो ऑक्सीडेशन एक अलग प्रोसेस है, ठीक है, एक तो जब हम जूसेस निकालते हैं तो उसमें जो भी जितने इंग्रेडिएंट्स आते हैं उसकी ऑक्सीडेशन होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज द न्यूट्रिशन कंटेंट जो है ना, जो उसमें कोई भी विटामिन सी है, आयरन है, कुछ भी जो भी मिनरल्स हैं, उनकी ऑक्सीडेशन शुरू हो जाती है तो उनका न्यूट्रिटिव कंटेंट डाउन जाना शुरू कर देता है. सो वी हैव टू टेक इट एज सून एज the juice we have made or prepared the juice. Okay, बट अगर उसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो होना शुरू हो जाते हैं तो एक और एग्जैजरेशन आ जाती है. तो इसका मतलब है कि जूसेस आर मोर वनरेबल, एंड द कट फूड आर ऑल्सो कट प्लांट फूड्स आर ऑल्सो वनरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया एंड ऑल. सो हमें फ्रेश वॉश्ड और होल फ्रूट्स खाने चाहिए रादर देन जूसेस. उसके बहुत सारे फायदे हैं, एक तो रफेज भी होती है, एक तो ऑक्सीडेशन के चांसेस कम होते हैं, दूसरा बैक्टीरिया के ग्रोथ के चांसेस भी कम होते हैं. ये सारे बेनिफिट्स हैं. इसी तरह से एनिमल फूड्स खाने को भी हम कहते हैं कि जितनी जल्दी स्लॉटरिंग हुई है वट एवर दो चांसेस, हमें उसको कुकिंग प्रॉपरली करनी चाहिए, सो दैट वी कुड बी सेव इट फ्रॉम द माइक्रोबैक्टीरिया. ये नहीं है कि कट फूड पड़ा है, एनिमल फ्लैश पड़ा है, तो कितनी देर वो पड़ा रहा और उसके बाद आप खा रहे हो तो फिर उस पे माइक्रोबैक्टीरिया के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है. सो हमें उससे बचना है. सो अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक कॉमन वर्ड विच आई टोल्ड यू कि कॉमन वर्ड है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के फूड्स पे अलग अलग, जैसे जूसेस हैं, कार्ब्स हैं, कुकिंग फूड्स हैं, और एनिमल फूड्स हैं, पनीर है, डेयरी आइटम्स हैं,
इन सब पे ना जरूरी नहीं कि एक ही तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो इसमें क्या आते हैं, एक तो बैक्टीरिया, जो मैं कॉमनली वर्ड यूज कर रही थी, दीज आर ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सो काइंड ऑफ माइक्रो बैक्टीरिया। यीस्ट ग्रो करती है, मोल्स ग्रो करते हैं, एल्गी ग्रो करती है, प्रोटोजोन्स ग्रो करते हैं, एंड और भी बहुत सारे नाम है, बट दीज आर द कॉमन नेम्स। ओके, सो बैक्टीरिया भी बड़ी तरह के होते हैं, ठीक है, और मोल्स एंड यीस्ट आर द मेजर कॉजेज ऑफ द फ्रूट। अगर आप इनमें देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, तो तीन तरह के, बैक्टीरिया, मोल्ड एंड द यीस्ट, these three kind of the microorganisms, they are the major cause of the food spoilage. Okay, बिकॉज ये क्या करते हैं, जो फूड होता है ना उसी पे रहना शुरू कर देते हैं, विच आई रहने का मतलब दे स्टार्ट यूजिंग दैट होस्ट, उसको अपना घर बना लेते हैं, उस होस्ट को यूज करते हैं और उसी पे ग्रो करते हैं, उसी पे नंबर ऑफ ग्रो कर जाते हैं, उनकी कॉलोनीज की कॉलोनीज ग्रो हो जाती हैं। पता कैसे, जैसे ऐसे एक कॉलोनी, एक दो बैक्टीरिया यहाँ थे, इतना सारा कॉलोनी ग्रो कर जाएगी, यहाँ पे उनको कॉलोनीज कहते हैं। जब नंबर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारा बढ़ जाता है ना, तो उसको कॉलोनीज कहते हैं। कितनी सारी कॉलोनीज, नंबर ऑफ कॉलोनीज ग्रो कर जाती हैं। तो आप सोच भी नहीं सकते कि इतने छोटे माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं ना, बट उसके कॉलोनीज के ग्रो होने के बाद भी ये माइक्रोस्कोपिकली ही हम इनको देख सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं देख सकते हैं इनको, ठीक है। तो बट जब चेंज, और ये इतना ग्रो करते हैं क्योंकि वो इनके लिए कल्चर बन जाता है, उसमें ये अपने तरीके से रहते हैं, इनके लिए हॉस्ट है, तो इतने सारे ग्रो कर जाएंगे, तो वो जो फूड की क्वालिटी होती है ना, ये जिस तरह से खा रहे हैं और इनके अपने बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, इनके अपने बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो वो क्या करते हैं, फिर उनके बाय प्रोडक्ट्स बनने से क्या होता है कि वो उस फूड की क्वालिटी जो है वो चेंज हो जाती है। फॉर माइक्रोबैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए अगर हम देखें देन तो इट्स फाइन, ठीक है। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है, इन चीजों की, ये माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे, और अगर आप लैब में इनको किसी भी तरह का अगर आपने एक्सपेरिमेंट करना है, किसी भी तरह के बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट करना है, देन यू रियली वांटेड टू ग्रो दैट बैक्टीरिया, तो आपको उसको एक फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। तो उसी तरह का फूड आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, ताकि उस तरह का बैक्टीरिया, विच काइंड ऑफ, मैंने बताया ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत तरह के हैं, या बैक्टीरिया, मोल्ड, यीस्ट, प्रोटोजोन, एल्गी, व्हाटएवर, तो हर तरह के बैक्टीरिया को, हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आपको डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर देना होता है, क्योंकि सबकी ग्रोथ का फर्क होता है, ठीक है। सो अगर आपके फूड में फेवरेबल कंडीशंस हैं किसी भी तरह के माइक्रोबैक्टीरिया के लिए, तो वो ग्रो करेगा बहुत इजीली, तो वो उसके लिए फेवरेबल हैं, बट हमारा जो फूड है वो तो खराब हो गया, ठीक है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, ये वो सब, अपीयरेंस सब चेंज करके रख देते हैं, स्मेल भी चेंज हो जाती है, टेस्ट भी चेंज हो जाता है, उसका शक्ल भी चेंज हो जाती है, उसकी जो टेक्सचर अपीयरेंस की हम बात करते हैं, उसकी अरोमा भी फर्क हो जाती है, ठीक है। मे बी ज्यादातर बैड स्मेलिंग ही होती है, गुड स्मेली तो होती नहीं है, विच वी डोंट लाइक, ओके। तो उसका टेक्सचर और फिर टेस्ट भी चेंज हो जाता है सारा कुछ, और अगर टेस्ट कर लिया तो आपको मैं कह रही हूँ कि डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा मोल्ड, कौन सा यीस्ट, कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा प्रोटोजोन, कौन सा एल्गी उस पर ऊपर कितना ग्रो किया हुआ है, वी डोंट नो, ठीक है। अगर उसमें बहुत ज्यादा कॉलोनीज ग्रो हुई थी और आपने इतना सा भी खा लिया, और दो माइक्रोबैक्टीरिया, दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ एनी काइंड आपके अंदर एंटर कर गए, तो आपकी बॉडी भी उसके लिए होस्ट बन जाती है, आपकी बॉडी भी एक कल्चर प्रोवाइड कर देती है उसको, ठीक है। तो उसमें भी वो ग्रो करने शुरू कर देते हैं, तो अंदर भी इन्फेक्शन होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं जो क्या है कि मोस्ट ऑफ द, ज्यादातर जो भी माइक्रोबैक्टीरिया है, इनमें से कोई भी, देखो गुड माइक्रोबैक्टीरिया भी हैं जो हमारे अंदर भी होते हैं, गुड माइक्रोफ्लोरा भी होता है जिसमें एक लैक्टोबैसिलस आता है, ठीक है, जो ज्यादातर हमें कर्ड से मिलता है। आजकल आर्टिफिशियली वो जो याकुल्ट कंपनी आती है उससे भी मिलता है, इसकी लैक जेड की टैबलेट्स भी आती हैं। whenever you would be having like जब भी कोई फीवर या कुछ भी होता है आप लोगों को, या कोई खास इन्फेक्शन हो जाए, तो whenever the doctor would prescribe you with the antibiotics, तो एंटीबायोटिक्स के साथ लैक्जेड या लैक्टोबैसिलस, बेसिकली उस कंपनी का कुछ भी नाम हो, और वो लैक्टोबैसिलस प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज दिस इज अ गुड माइक्रोफ्लोरा विच विल हेल्प यू टू डाइजेस्ट। बिकॉज जब हम एंटीबायोटिक खाते हैं ना, तो हमारी बॉडी का जो वो हम किसी और डिजीज को किल करने के लिए खाते हैं, किसी और तरह के इन्फेक्शन को किल करने के लिए खाते हैं एंटीबायोटिक, बट जो हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम का माइक्रोफ्लोरा होता है ना नॉर्मल, वो भी किल हो जाता है उससे, फिर एंटीबायोटिक से, ठीक है। तो हमारा बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब हो जाता है, तो फिर उसके साथ एंटीबायोटिक के साथ हमें जो हमारी बॉडी का जो लैक्टोबैसिलस, जो गुड बैक्टीरिया है ना, गुड माइक्रोबैक्टीरिया है, वो हमें देना पड़ता है, ताकि हमारा जो किल हो रहा है और जो हम खा रहे हैं उसके साथ साथ वो बैक्टीरिया भी हमारे अंदर जाए। या हम दही खाने के लिए सजेस्ट किया जाता है, या हमें याकुल्ट लेने के लिए सजेस्ट किया जाता है, जिन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा ठीक नहीं रहता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द लैक्टोबैसिलस,
तो उनको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप लैक्टोबैसिलस लीजिए, इन एनी फॉर्म मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये प्रोबायोटिक्स होते हैं, प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं, याकुल्ट होता है, ठीक है। तो आप इनको लेंगे तो मतलब डिपेंड करता है कि कितना है, बहुत लोगों को बहुत सूट करता है बिकॉज दे आर द हेल्पिंग बैक्टीरियाज, ओके, फॉर द डाइजेशन टू, ठीक है। सो अब हम बात कर रहे थे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो स्पॉइल करते हैं, बट वी ऑल्सो हैव द हेल्पिंग बैक्टीरिया इन आवर बॉडी, सो विच हेल्प इन द डाइजेशन। कुछ माइक्रो बैक्टीरिया जो हैं वो खराब करते हैं डाइजेशन, ठीक है, जिस हिसाब से हम डिस्कस करते आ रहे हैं, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं, अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हमारे सारे के सारे जो बैक्टीरिया हैं, माइक्रो बैक्टीरिया हैं, वो सब खराब होते हैं। हमने ना माइक्रोबायोलॉजी के ऐसा सब्जेक्ट है, बायोकेमिस्ट्री तो हम डाइजेशन एंड ऑल सब पढ़ते हैं, पर माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम ना ये माइक्रो बैक्टीरिया की जो प्रॉपर्टीज है ना, इनको हम बहुत अच्छे से यूज करते हैं, ठीक है, इनके फंक्शंस को एक्सप्लॉइट। अब हमें पता चल गया कि ये वाला माइक्रो बैक्टीरिया है, ये दिस काइंड ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शन करेगा। तो उसी तरह से हमने जो विनेगर जो हमारी किचन में हम यूजुअली पिकल्स में डालने के लिए और भी कई चीज़ों में डालने के लिए हम किसी भी अमाउंट में डाल के हम बनाते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम्स, अचार है, विनेगर है, ऑलिव्स हैं, ज़्यादातर स्टोरेज ऑफ फूड के लिए है, जो पिकल टाइप हम बनाते हैं, ठीक है। तो वो जो विनेगर है ना, वो एक बैक्टीरियल एक्शन से बनता है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है ऑब्वियसली, ठीक है। तो घरों में कोई लोग बनाते हैं, बट इट्स नॉट यूजुअली, विनेगर घर में नहीं बनता है ज़्यादा, ये बैक्टीरियल स्टैंडर्ड एक प्रोटोकॉल्स होते हैं जो इंडस्ट्री ही प्रिपेयर करती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में जो विनेगर है जब बनता है, दैट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड। अब देखो ना, ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें खराब करते हैं, बट कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज को हम, जिनकी नेचर को हम, जिनकी फंक्शनिंग को हम, कि ये इस पे काम करेंगे तो इसका प्रोडक्ट ये बनेगा, तो वी विल बी गोइंग टू मेक, वी एक्चुअली मेक द विनेगर बाय दैट प्रोडक्ट, ओके, by that function of that bacterial action, okay। so ये हमने यूज करना। तो अब जैसे कर्ड है, that is also lactobacillus, वो सारे के सारे lactobacillus बैक्टीरियाज हैं, लेकिन वो हैं क्या, बेनिफिशियल हैं हमारे लिए। सो वी हैव टू मेक श्योर कि कौन से लेने हैं कौन से नहीं है, नॉर्मल माइक्रोबैक्टीरिया है या बैक्टीरिया विच हेल्प्स इन डाइजेशन, और बैक्टीरिया जो हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में यूज करते हैं फूड आइटम्स को चेंज करने में, ठीक है। ऐसे तो यीस्ट भी होती है जो ब्रेड को बनाने में यूज होती है, और यीस्ट और बहुत सारे खानों में यीस्ट यूज होती है, उसका एक फंक्शन हम यूज करते हैं जिससे हम डिफरेंट काइंड ऑफ दी करते हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, हमें पता है कि इससे ये बनेगा, ओनली देन वी कैन एक्चुअली यूज। अदरवाइज यीस्ट बहुत वैरायटी की होती हैं, बैक्टीरियाज बहुत वैराइटीज के हैं, मोल्ड्स बहुत वैरायटी के हैं, एल्गी बहुत वैरायटी के हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं वो बहुत वैरायटी के हैं। अगर आप अलग अलग ये कैटेगरीज में, माइक्रोऑर्गेनिजम्स इज अ कॉमन वन, उसके नीचे बैक्टीरिया, यीस्ट, मोल्ड, प्रोटोजोन्स, ये सब आते हैं। उसके बाद बैक्टीरिया की भी बहुत सारी वैरायटीज हैं, एंड देन यीस्ट की बहुत सारी वैरायटीज हैं, मोल्ड्स की, एल्गी की, प्रोटोजोन्स भी बहुत तरह के होते हैं। कौन से बेनिफिशियल हैं कौन से बेनिफिशियल नहीं है, ये बहुत लंबा है, बट आपको इतना ही याद रखना है कि ये लोग ज्यादातर करते हैं, बट कुछ हमारे पास बेनिफिशियल भी होती हैं, और कुछ को हम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लॉइट करके हम फूड आइटम्स को प्रिपेयर भी करते हैं, ठीक है। तो सो दीज आर, कर्ड की एक एग्जांपल ले ली, ठीक है। तो बैक्टीरिया एंड मोल्स एंड ऑल ये सब चीजें हो गया, ओके। सो बैक्टीरिया को अब हम अलग अलग डिस्कस कर, पहले हमने माइक्रोऑर्गेनिज्म डिस्कस किए, नाउ वी हैव डिस्कस द डिफरेंट काइंड ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिजम्स, जिसमें सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, बैक्टीरिया। फिर नाउ अब डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बैक्टीरिया का। सो ये माइक्रोऑर्गेनिजम्स माइक्रो ही हैं सारे, माइक्रो मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हम नहीं देख सकते हैं, विच आर नॉट विजिबल विद आवर नेकेड आइज, हमें वो यूज करना है माइक्रोस्कोप, हमें यूज करना पड़ेगा, जिसके साथ हम देखेंगे कि माइक्रोस्कोप यूज करके दे आर द माइक्रोस्कोपिक, उनकी नेचर, उनकी शक्ल या उनकी शेप, और वो कैसे मूव करते हैं या कैसे देखना है, तो आपको माइक्रोस्कोप यूज करने पड़ेंगे, बिकॉज वी कैन नॉट सी, दे आर सो स्मॉल, ओके। इवन इफ दे ग्रो इन लार्ज कॉलोनीज, देन ऑल्सो we cannot say that these are the microorganisms, okay। So I mean which we can actually see with the naked eyes, even the food is spoiled food नजर आ जाएगा आपको, ठीक है। अगर फूड किसी में बैक्टीरिया या एल्गी कुछ भी ग्रो कर रहा है, माइक्रोऑर्गेनिजम्स के आई मीन माइक्रोऑर्गेनिजम्स उस पर वर्क कर रहे हैं, और हमें फूड क्वालिटी
अपीयरेंस, अरोमा, टेक्सचर, फाउल स्मेल हो सकती है, वो सब नजर आ जाएगा, पर माइक्रोनिज्म्स नहीं हमें नजर आते, ठीक है। एल्गे हमें नजर आ जाती है काफी हद तक, जब वो बहुत ग्रो कर जाती है, जैसे पिकल्स के ऊपर एक व्हाइट लेयर आ जाती है ना, ठीक है, वो हमें नजर आ जाती है, ठीक है। फंगस भी हमें नजर आ जाती है, ग्रीन ग्रीन सा कहीं हो जाता है जहाँ पे ज्यादा मॉइस्चर होता है, पर थोड़ी बहुत वो नजर नहीं आती है। जब बहुत ज्यादा लार्जली ग्रो करती है, ओनली देन वी कैन सी दैट। बट अगर डिफरेंट काइंड ऑफ मोल्स भी ज्यादा हो जाते हैं तो, बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बहुत स्मॉल है, मैंने आपको बताया ना कि बहुत डिफरेंट क्वालिटीज के, क्वांटिटीज में क्वालिटीज के भी हैं, और डिफरेंट कैटेगरीज भी हैं इनकी। तो सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर रियली माइक्रो, ओके, इतने माइक्रो हैं कि इफ दे ग्रो देन यू कैन नॉट जस्ट आई मीन सी दोस सम ऑफ द थिंग्स विच वी कैन ऑब्जर्व। बट फिर भी अगर ऑब्जर्व नहीं होता है, इफ दे हैव ग्रोन, आप माइक्रोऑर्गेनिजम्स को नहीं देख रहे हो, but the texture of the food and the aroma of the food and the appearance of the food and taste of the food and the smell of the food, you can actually see that they have changed because of the uh, functioning, or you can see that by the actions of those microorganisms, because they have started living on that food, they have started using that food as a culture to grow themselves, okay. So the little microorganisms are various in shaped, मतलब बैक्टीरिया की ना बहुत सारी शेप्स हैं जो कर्व्ड भी होती हैं, समटाइम्स लॉन्ग होती हैं, समटाइम्स दे आर द सिलेंडर वंस, ठीक है, एंड समटाइम्स दे आर द कॉक्स क्रू टाइप, किसी भी तरह के हो सकते हैं, मतलब दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ, ओके। आप में बहुत ज्यादा नहीं है, इतना इसको करो, बट ये क्वेश्चन आ जाता है। बैक्टीरिया की शेप से छोटा 2 मार्क्स का भी आ सकता है, यीस्ट का, या अगर सारा आ गया तो फिर लॉन्ग टाइप में आएगा, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की शेप से कर्व्ड, लॉन्ग, सिलेंडर। हाँ जी, हाँ जी बेटा। मैम ईस्ट मतलब? यीस्ट भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। अच्छा। जैसे बैक्टीरिया होते हैं ऐसे ही हैं। अब मैं कैसे बताऊं, यीस्ट काफी मैम इसको सिंपल लैंग्वेज में हम लोग खमीर भी बोल सकते हैं, राइट? खमीर होता है, खमीर बोलते हैं हम इसको, लेकिन खमीर को हम थोड़ा पॉजिटिव सेंस में लेते हैं। जब मैंने बोला ना आपको कि अब देखो ये चीजें हैं, ये ऐसी चीजें हैं, जब जिस चीज की हम बात कर रहे हैं ना, जिस कैटेगरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम यूज करते हैं एज ए बेनिफिशियल, ठीक है। खमीर यीस्ट को कुछ विच सम काइंड ऑफ अ यीस्ट विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड्स एंड ऑल, और बहुत सारी चीजों में यूज होती है। बट खमीर करने के लिए यूज करते हैं ना, थोड़ी सी यीस्ट डालते हैं ताकि वो बाकी का मटेरियल भी हो जाए, सारा का सारा यीस्ट नहीं, मतलब कुछ चीजों को यीस्ट ऐड करके बनाते हैं। बट हर तरह की यीस्ट इज नॉट गुड। माइक्रोबैक्टीरिया मैंने आपको बताया, लैक्टोबैसिलस इज अ गुड वन, बट हर तरह का माइक्रोबैक्टीरियम इज नॉट गुड वन, ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। सो देयर आर वेराइटी ऑफ, मैंने बताया ना आपको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, उसके आगे कितनी कैटेगरीज हैं, एल्गी है, फंजाई है, ठीक है, और प्रोटोजोन्स हैं, मोल्स हैं, यीस्ट है, बैक्टीरियाज हैं। अब एक बैक्टीरिया को हम बेनिफिशियल कह रहे हैं, एक यीस्ट को हम कह रहे हैं, बट हर तरह का नहीं है। अब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं कि बैक्टीरिया या माइक्रोऑर्गेनिजम्स कॉमनली ले लेते हैं, उसको हम कह रहे हैं कि स्पॉइल करते हैं फूड, बट हम अब उसको इंडस्ट्रियली प्रिपरेशंस हमारी ऐसी भी हैं जो हम उनको यूज करके हम फूड आइटम्स भी बना रहे हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल आपकी बुक में है विनेगर, तो उसको हम फूड आइटम में यूज भी करते हैं, जबकि वो किसका प्रोडक्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का है। सो आपको ये देखना पड़ेगा कि हर तरह का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेनिफिशियल नहीं है, कुछ ही हैं जिनको साइंटिस्ट ने यूज करके, उनकी प्रॉपर्टीज को यूज करके, अब देखो विनेगर है, हमें बनाना था विनेगर जिसकी हमें पॉजिटिव प्रॉपर्टीज हैं, तो हमें एक ऐसा बैक्टीरिया लेना पड़ता है कि अब उसको यूज करेंगे कि इसको बैक्टीरिया को इसमें डालेंगे तो इसने ये तो बना ही देना, तो उससे क्या था कि वो विनेगर बन गया था। अब हर तरह का माइक्रोबैक्टीरिया विनेगर नहीं बनाता। सो ये इस टॉपिक को थोड़ा सा आप ध्यान से, यू हैव टू बी सीन, ठीक है। विनेगर इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द फूड आइटम्स लाइक आप कैसे यूज करते हो, जैसे ऑलिव्स को स्टोर करना है, ऑलिव्स की प्रेपरेशन आती है विनेगर में आती है। कई बार हम अदरक, जिंजर और गार्लिक का अचार भी तो डालते हैं, दैट वुड बी इन अ विनेगर, और बहुत सारे अचार हम विनेगर में डालते हैं। समटाइम्स हम
अनियंस भी तो देखा है ना आपने, रेड अनियन है जिसमें हम स्टोर करते हैं, इवन होटल्स में इफ यू गो, बीच में 2-3 बीट रूट्स डाल के पीसेस एंड देन अनियन, उसमें विनेगर डाल देते हैं। सो इस तरह की विनेगर अब वेरियस काइंड ऑफ फूड में, हर किसी तरह के फूड में विनेगर यूज नहीं होता, बट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स में यूज होता है। कईयों में हम ऐसे लेमन जूस डाल के भी कर लेते हैं, बट समटाइम्स क्या होता है कि हमें विनेगर, मतलब डिपेंड करता है, हम विनेगर कहीं भी यूज कर सकते हैं। ज्यादातर इट इज यूज्ड इन अ स्टोर्ड फूड्स, जैसे हमने कोई डालना है, हाँ, फॉर क्लीनिंग पर्पसेस आल्सो विनेगर की। विनेगर में आजकल तो हम देखते हैं DIYs में, जैसे डू इट योरसेल्फ है, उसमें क्या होता है कि थोड़ा विनेगर डाला, थोड़े लेमन जूसेस डाले, फिर बीच में कुछ और डाल के आप उसको रख देते हो, सो फ्लाइज नहीं आती हैं, एंड्स नहीं आती हैं। बट एप्पल साइडर विनेगर इज ऑल्सो यूज्ड, एप्पल से सिडार विनेगर जो हम बनाते हैं, दैट इज यूज्ड फॉर द फैट लॉस ऑल्सो। मॉर्निंग में लेते हैं, ठीक है, उसको, उसमें और कुछ भी हनी या जो व्हाटएवर, ये तो डिफरेंट डिफरेंट प्रिपरेशंस हैं, ठीक है। नॉर्मल विनेगर भी है, एप्पल सिडार विनेगर तो बहुत ही बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन है, बट दीज आर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन बाय द यूज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये कह रही हूं मैं आपको। सो ये देखना पड़ेगा कि कौन से वाला है और किससे कौन सा फूड बनता है। अब अचार है, देखो, अब अगर विनेगर वाला अचार होगा ना, उसमें एल्गी ग्रो नहीं करती है, जो व्हाइट व्हाइट कलर की लेयर आ जाती है ना, वो नहीं आती है। मैंगो वो ऑयल वाले अचार में आती है, ऑयल ज्यादा। अब हम स्टोर्ड जो फूड है, देखो ये ना बहुत वास्ट टॉपिक है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रही हूँ। अगर इसमें हम डिटेल में बात करने लगे तो वेराइटी काइंड ऑफ फूड्स हैं, क्योंकि हम खाते वेराइटी काइंड ऑफ फूड है, और कुकिंग मेथड्स वेराइटी काइंड ऑफ हैं, और ड्राई फूड्स हैं, सब्जियां बनाते हैं, फ्रूट्स बनाते हैं, और हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रो करने के तरीके भी बड़े हैं। जैसे हमने सॉइल, वाटर एंड एयर से कहा है, सॉइल एंड वाटर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखो, सॉइल से हम क्लीनिंग कर सकते हैं, ऊपर से पीलिंग कर सकते हैं, ठीक है, फ्रूट आइटम्स को, ठीक है, और ऊपर से जो वाटर कंटेमिनेशन है उसको तो हम प्योरीफायर्स लगा सकते हैं, प्योरीफायर्स की बजाय, जिससे हमें सेफ्टी मिल जाती है, या फिर हम बॉयल करके यूज कर सकते हैं। एयर से कैसे बचेंगे? अगर कुकिंग कुक्ड फूड है या ओपन फूड है, कट फूड है, अगर थोड़ा सा भी एयर टाइट कंटेनर नहीं है तो एयर इज एवरीवेयर, ठीक है। आप सारे कंटेनर्स वैक्यूम टाइट थोड़े यूज करते हो, सब्जियां बनाते हो तो थोड़ी देर बाद, ये वाली चीजें, फिर एयर से कैसे बचोगे? तो एयर कहाँ से फ्लो करके आ रही है, उसमें क्या फ्लो करके आ गया, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करके आ गए, यू नेवर नो। और अगर थोड़े से भी आगे, 1-2 बैक्टीरिया भी आगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, चलो कॉमनली बात करते हैं हम, 1-2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आके उस फूड को स्पाइल करके, तो 1 या 2 से ही ग्रो कर जाएंगे वो तो, ठीक है। बिकॉज द फूड आइटम इटसेल्फ वर्क एज ए कल्चर, एज ए ग्रोथ मीडिया फॉर दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। 1 आएगा, 2 आएगा, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8, 10, 16, 50, 100, हजारों की कॉलोनीज बन जाती हैं, ठीक है। विद टाइम ऑब्वियसली उनकी भी अपनी ग्रोथ का टाइम होता है, उसका भी अपना ग्रो का सिस्टम होता है, रेप्लिकेशन करने का सिस्टम होता है कि कितना टाइम लगेगा 1 से 2 बनने में, 2 से 4 बनने में, 4 से, लेकिन जैसे 4 बन जाएंगे वो 4 ग्रो कर, देखो 1 से अगर आधा घंटा लगता है 2 बनने में, सो 2 से भी आधा ही घंटा लगेगा 4 बनने में, और 4 से 8 बनने में भी आधा घंटा लगेगा, और 8 से 16 बनने में भी आधा ही घंटा लगेगा, क्योंकि एवरीबडी इज ग्रोइंग नाउ। जैसे वो नंबर इंक्रीज करने लग जाएगा तो एवरी हाफ एन आवर वो नंबर डबल होता जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये मैं, हाँ जी, ये जो विनेगर है आज की तारीख में हम तो रेडीमेड लाते हैं, लेकिन हमारे जो दादा दादी थे वो कैसे घर पे, मतलब किस चीज से वो बनाते थे? मुझे नहीं पता मुझे मतलब वो क्या है, उसको तो क्या बोलते हैं? हमारे जो बुजुर्ग थे वो तो सब कुछ ही घरों में ही करते थे, तब इंडस्ट्री होती नहीं थी, आटा उसको क्या पिसाने भी वो बोलते आटा हैं? भी घर पे ही पीसते थे, चक्कियां नहीं होती थी, ठीक है, और छीलना काटना करना सब घरों में ही करते थे ना। अब तो इंडस्ट्री आ गई है, क्योंकि हर चीज पिसी हुई मिलती है, दालें छिली हुई मिलती हैं, ठीक है, सब मतलब कुछ ये भुना हुआ। विनेगर किस चीज से बनता है? मतलब मैम डिफरेंट चीजों से भी बनता है, एप्पल सिडार विनेगर एप्पल से ही बनता है, ठीक है। एप्पल खट्टा होता है मैडम? नहीं, एप्पल सिडार विनेगर थोड़ा खटास पे होता है, वो तो प्रिपरेशन बिल्कुल फर्क हो जाती है मैम, उसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। एप्पल की प्रॉपर्टीज विनेगर में आएंगी, ये आप नहीं कह सकते, ये आप नहीं कह सकते। मैं वही आज मैं एक आर्टिकल मैं आपको बताती हूँ कि कैसे फूड की प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं प्रिपरेशन से। आज मैं कहीं, क्योंकि मैं पढ़ती रहती हूँ इन चीजों को, तो आज तो मैंने कहीं एक आर्टिकल पढ़ा कि इवन अनियन है ना, हम उसको छीलते हैं, अगर हम उसको ऐसे ऐसे गोल गोल रिंग्स में काटते हैं,
अगर हम उसको ब्रीक ब्रीक काटते हैं या फिर बिल्कुल चॉप करते हैं या मिक्सी में चॉप करते हैं या थोड़ा लंबा लंबा ऐसे ऐसे करके काटते हैं, तो मैं पढ़ रही थी अभी, वो पूरा आर्टिकल पढ़ा नहीं मैंने, बट आई हैव सीन कि उसमें कहते हैं कि सारी की हर तरह की कटिंग की प्रॉपर्टीज में भी फर्क है अनियन की, पता है आपको? अभी सब पूछेंगे कि कौन से स्टाइल से काटना चाहिए। मैंने अभी ये आर्टिकल कंप्लीट नहीं किया है, आई मस्ट टेल यू कि किस तरह से ये मैं आपको। मेरा हाँ, सिर्फ कंफ्यूजन ये है कि विनेगर मतलब क्या, मतलब वो मुझे समझ में नहीं आता। देखो वो खट्टा एक चीज वो एसिडिक समझ चीज में आता है। खटास है, ये खटास के लिए यूज होता है और थोड़ा सा एसिडिक होता है, ठीक है। और ये स्टोरेज प्रॉपर्टीज के लिए ज्यादातर यूज होता है, जैसे आपको स्टोर्ड कुछ बनाना है। विनेगर में हम ज्यादातर, देखो हम फूड आइटम्स में विनेगर आई डोंट थिंक सो कि बहुत प्रिपरेशन में डेली रूटीन में यूज करते हैं। कहाँ डालते हैं हम? सब्जियों में, दालों में कहाँ विनेगर डालते हैं? नो, वी डोंट ऐड। हम ज्यादातर अचार डालते हैं विनेगर बेस्ड, ठीक है। मैं तो ज्यादातर, वैसे मैं तो विनेगर कम यूज करती हूँ। एप्पल सीडर विनेगर आई हैव इन द मॉर्निंग, अगर कभी थोड़ा लेना है, बिकॉज इट्स अ फैट लूजनिंग के लिए काम आता है, फैट रिड्यूसिंग के लिए काम आता है। बट उसमें डिफरेंट प्रिपरेशंस में जाता है, वो तो डिटॉक्स एंड ऑल, वो एक अलग चीज है, ठीक है। वो बड़ी सारी चीजें हैं, ठीक है। बट ज्यादातर विनेगर जो यूज होते हैं ना, दैट इज यूज फॉर द स्टोर्ड पर्पसेस। इसमें कुछ भी डाल के आप स्टोर करोगे तो दैट विल स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम, इवन आउटसाइड, इवन फ्रिज में नहीं जरूरत होती है, बाहर ये स्टोर करना पड़ेगा आपको और बाहर ही स्टोर कर लोगे आप। तो वो चीज का टेस्ट चेंज नहीं हो जाएगा? चेंज होता है चीजों का, ओके स्टोरेज में हमेशा चेंज होता है। ओके। जो फ्रेश चीज होती है वो कभी भी वैसी नहीं रहती है, कटिंग के बाद वो और डिफरेंट हो जाती है, जूस निकालोगे और डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, कुकिंग करोगे और डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी, भून के खाओगे डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आप बात करें पाइनएप्पल की, ठीक है, सो पाइनएप्पल को अगर आप एज ए फ्रूट खाते हो तो डिफरेंट है, ठीक है। अगर आपका जूस लेते हो तो डिफरेंट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इंग्रेडिएंट ही चेंज ही हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। अमाउंट ऑफ दोज इंग्रेडिएंट्स चेंज हो जाता है, अमाउंट। जैसे कुछ भी अगर उसमें कार्ब्स हैं, मीठा है, तो उसमें कम हो जाएगा, या क्योंकि फाइबर निकल जाएगा, ठीक है। तो यस, अनुराधा जी कह रही है विनेगर इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द चाइनीज फूड में यूज होता है, चॉप्सिस में भी डलता है, whenever you would be making that नूडल्स, हाका नूडल्स, उनमें भी डलता है, ठीक है। उनके कुछ भी बनाओ उसमें डलता है, वो तो शरेआम ऐसे स्प्रिंकल करते हैं ऊपर अपने। ऐसे कोई फूड में अगर विनेगर डालते हैं तो क्या उसका जीआई कम हो जाता है? देखो मैम, ये चीजें तो कैलकुलेट करके देखनी पड़ती हैं व्हेनेवर वी ऐड फूड, ठीक है। जैसे अब मेरे को पता है कि विंटर्स में हम बनाते हैं जो गाजर, अदरक वाला गाजर और गोभी का अचार जो विंटर्स में डलता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि उसमें भी हम गुड़ को थोड़े से विनेगर में, वैसे अगर हम फ्राई करते हैं या नहीं करते हैं तो गुड़ में विनेगर को हम करके फिर हम डाल देते हैं बीच में, ठीक है। उसमें फिर वो थोड़ी सी रतन जोत भी ऑयल में डाल के या कुछ भी बड़े सारे चीजें डालते हैं। अब उसमें इतनी सारी चीजें डलती हैं जो कि बेनिफिशियल भी हैं, बहुत सारे स्पाइसेस डलते हैं जो कि बेनिफिशियल हैं, उसमें जाके उसकी प्रॉपर्टीज। मैं तो ज्यादातर, जहां तक मैंने देखा है, मुझे बेनिफिट तो सिर्फ एप्पल सीडर विनेगर के ही मैंने पढ़े हैं। नॉर्मल विनेगर के भी मुझे तो आई डोंट थिंक सो, मुझे स्टोरेज प्रॉपर्टीज के अलावा मुझे कुछ नहीं लगता उसका। दिस इज यूज्ड फॉर द स्टोर, क्योंकि अगर आप उसको नींबू की जगह अगर दाल में थोड़ा सा स्प्रिंकल करके, तो यूल फील द एसिडिक प्रॉब्लम्स। हर किसी की जिएगी, हाँ, प्रॉब्लम्स आती हैं। कई लोग, पता क्या होता है कि मैं, आई डोंट वांट टू नेम एनी पर्सन, वन ऑफ माय फैमिली मेंबर, उनको ना दाल या सब्जी में ना थोड़ा सा हमेशा सिट्रस जूस या लेमन जूस स्क्वीज करके खाने की आदत थी है। तो समटाइम्स अगर लेमन अवेलेबल नहीं है घर में, जैसे नहीं है या कुछ है, तो वो विनेगर के 2-4 ड्रॉप्स डालेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ खटास है वो, ठीक है। तो वो टेस्ट बूस्ट, बट उसके बाद प्रॉब्लम्स आती हैं। जो लेमन जूस करेगा वो विनेगर नहीं करेगा, दे बोथ कैन नॉट हैव। सिर्फ एक खटास या टेस्ट में खटास पसंद है लोगों को तो वो करेगा, बट फंक्शंस सेम होंगे ये नहीं होता। और वो किसमें डालना, उसमें उसने क्या बन गया, गोभी की सब्जी के ऊपर स्प्रिंकल किया लेमन जूस को या फिर विनेगर को, तो डिफरेंट फंक्शंस हो गए। किसी दाल में यूज कर रहे हो, डिफरेंट फंक्शंस होंगे। फ्रूट के ऊपर डाल रहे हो ड्रॉप्स, तो डिफरेंट फंक्शंस होंगे। और अगर ऑलिव्स का अचार, ऑलिव्स को आपने स्टोर किया है, क्योंकि मैंने देखा है कि जो मैंने देखा है ना, ज्यादातर मार्केटेड जो प्रिपरेशन विच आई यूज फॉर द विनेगर, तो ऑलिव्स की प्रिपरेशंस हैं,
ठीक है। और क्या नाम है, पेप्रिकाज होती हैं, जो रेड पेप्रिका है उसकी प्रिपरेशंस हैं, और एक वो खीरा आता है ना, वो भी स्टोर्ड में आता है। वो ये सारी प्रिपरेशन जो मार्केटेड प्रिपरेशंस हम लाते हैं ना, जो हम यूज करते हैं ब्रेड के ऊपर या ब्रेड पिज्जाज घर में अगर बनाए, तो ऑल दीज प्रिपरेशंस आर स्टोर्ड इन अ, क्योंकि इनसे शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है इन सब चीजों की। और घर में ज्यादातर या लेमन इज गुड इन एनी ऑफ द थिंग, एनी ऑफ द सब्जी के ऊपर अगर आप डालें तो इट्स अ विटामिन सी। इट एक्चुअली इम्प्रूव्स द टेस्ट आल्सो इफ यू वांट टू हैव दैट लिटिल बिट खटास, लोगों को पसंद है, पर विटामिन सी जाता है, इट डजंट ऑल्टर, ये नुकसान नहीं करेगा, इट्स अ गुड फॉर। सिरका या विनेगर की आप बात कर रहे हैं, वो नुकसान करता है, लेमन नहीं, ठीक है। मतलब विनेगर लॉन्ग टाइम नहीं लेना चाहिए। विनेगर तो मैं शॉर्ट टाइम भी नहीं कहती, लॉन्ग टाइम तो छोड़िए, शॉर्ट टाइम भी नहीं कहती, बल्कि एंड मैं आपको ये बताती हूँ कि whenever I have the olives, because olives are antioxidants and we can have it, क्योंकि वो मार्केटेड ऑलिव्स हमारे यहाँ पे अब ऐसी प्रिपरेशंस में होते हैं, सो इफ यू वांट टू हैव, तो मैं क्या करती हूँ कि उसमें सॉल्ट ही बहुत होता है, क्योंकि कोई भी अचार या कोई जो ये ऐसी सी प्रिपरेशंस होती है ना, मुरब्बा हो गया, अचार हो गया, कुछ मीठे होते हैं या कुछ नमकीन होते हैं, तो सॉल्ट स्ट्रेस बहुत होती है। तो व्हाट आई डू कि मैं थोड़े से ऑलिव जितने भी मुझे लेने हैं, एंड देन आई पुट इनटू अ वाटर, लीव फॉर सम टाइम। उससे क्या है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जाने से उसका जो मैक्सिमम सॉल्ट है, जो सॉल्ट कंटेंट है, जो चाहे नमक हो चाहे कुछ भी हो, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ना ऑस्मोसिस से वो बाहर आके उसमें आ जाता है, तो हमारा सॉल्ट कंटेंट जो है, हमारी इनटेक जो होती है, वो भी एक लिमिटेड हो जाती है। 100% नहीं जाएगी, बट एटलीस्ट दैट वुड बी रिड्यूस्ड, बिकॉज सॉल्ट बहुत ज्यादा नहीं लेने चाहिए, आइदर इट कुड बी मीठा, आइदर इट कुड बी, और इट कुड बी अ नमकीन ऑल्सो, ओके। सो ये हमें ज्यादा लेने ही नहीं होते हैं, ठीक है। बच्चों में इट्स ओके, बट एक एज के बाद यू हैव टू रिड्यूस योर सॉल्ट इनटेक्स, वेदर इट्स अ मीठा, नमकीन और एनी काइंड ऑफ सॉल्ट, स्पाइसेस भी इवन। तो बेनिफिशियल ऑफ द स्पाइसेस, जैसे कुक करके हम बहुत ज्यादा स्पाइसी बनाते हैं, सो नो दैट कैन नॉट बी टेकन। दालचीनी या सिनेमन, इसको अलग से एक अलग प्रिपरेशन में, डिटॉक्स वाटर्स में या मॉर्निंग वाटर्स में आप लीजिए, तो वो बेनिफिशियल है, रादर देन कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ मसालों का डाल के आप जब कुकिंग करते हैं, बेसिकली द इंडियन सिनेरियो, हल्दी मसाले 3600 तरह की चीजें डाल के आप बनाते हो, सो समटाइम्स दैट वुड बी एक्चुअली गिविंग अ प्रॉब्लम टू द स्टमक, ठीक है। एसिडिक प्रॉब्लम्स एंड ऑल आती हैं, बिकॉज द लिमिटेड अमाउंट नहीं है हमारा, हम बस उसके टेस्ट और टेक्सचर को चेंज करने के लिए जो हम करते हैं वो रह जाता है, बट आपको उसके बेनिफिट लेने हैं। हालांकि इंडियन स्पाइसेस आर दे आर वेरी गुड, हम जब चिलीज भी कई लोग बहुत ज्यादा डालते हैं, मसाला डालेंगे बहुत ज्यादा, तो अमाउंट शुड बी the amount of everything should be nominal, which could give you benefits rather than giving up problems. क्योंकि आप शादियों में जाते हो, वहां भी तो हम नॉर्मल लैंग्वेज में व्हाट वी से कि मसालों वाला खाना होता है, ज्यादा घी तेल वाला खाना होता है, वो सुंदर देखने में लगता है, कुकिंग मेथड होते हैं, रड़ा सा हुआ होता है, बिकॉज दे आर एक्चुअली गोइंग टू saute for a longer time, okay, just to make flavor and all our things. तो उससे दिक्कत आती है ना, घर के खाने से नहीं आती, बिकॉज वी यूज द लिमिटेड वंस, हम वही मसाले वही ज्यादा चीजें यूज करते हैं, ठीक है। बट उनसे इतनी दिक्कत नहीं आती है, बिकॉज दोज थिंग्स दे आर एक्चुअली यूज्ड लिमिटेड, ठीक है। हमें टेक्सचर नहीं है शादियों में, पार्टीज में, तभी इसीलिए दिक्कत आती है। सो ऑल दीज थिंग्स शुड बी अवॉइडेड जस्ट बिकॉज ऑफ to make your digestive system work properly. Over कोई भी चीज होगी वो खराब करेगी। तो vinegar, I don't think so कि vinegar good होता है। Vinegar is not good to be taken because acidity और आपके एक normal pH के level को वो change करता ही करता है, और आपकी बॉडी में ऑलरेडी HCl बनता है, होता है आपकी बॉडी में HCl से pH लो हो जाती है, which is actually mandatory for the digestive system, for the proper working of the enzyme, some of the enzyme, for the digestion HCl secrete होता ही होता है, ठीक है। थैंक यू मैम। तो ये जो टॉपिक है ना, इसको आपने पॉजिटिव भी लेना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और नेगेटिव भी लेना है, बिकॉज ईच एंड एवरी काइंड ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नॉट गुड, and each and every kind of the microorganism is not bad too. Even algae and fungus also, some person in some countries that eat algae also, which is a beneficial also, which is rich in proteins also, okay. So ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इन चीजों को पढ़ना पड़ता है कि कौन सी बेनिफिशियल है, कौन सी नुकसान करेगी। तो वेराइटी ऑफ फूड्स, हम एक ही तकड़ी में सबको नहीं तोल सकते, ठीक है।
सो यीस्ट की अगर हम बात करें, सो नाउ दिस इज आल्सो अनदर कैटेगरी ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिजम्स. हमने अभी डिस्कस किया बैक्टीरिया एंड देन नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यीस्ट. ये भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स है एंड ये किसको यूज करने के लिए होती है? फर्मेंट. और फर्मेंटेशन क्या है? इट्स अ वन कॉमन टॉपिक, कॉमन फिनोमिनन व्हिच वी एक्चुअली डे टू डे रूटीन्स में हम अपने फूड को फर्मेंट करते ही हैं. फर्मेंटेशन से इवन डाइजेशन ऑफ दैट काइंड ऑफ अ फूड बिकम्स मोर गुड. आप ज्यादा अच्छा बना सकते हो और स्टमक के लिए फर्मेंटेड फूड बहुत अच्छा भी होता है. ठीक है. एंड साउथ इंडियंस हैं वो ज्यादातर फर्मेंटेड फूड ही खाते हैं. डोसा इडली का सारा बैटर है जो सारा फर्मेंटेड ही होता है. ठीक है. इवन दे फर्मेंट द राइस, इवन फर्मेंटेड राइस वाटर दे यूज फॉर देयर हेयर एंड ऑल. मतलब बड़ी सारी सी चीजें हैं. अगर आप इसमें जाना शुरू करो तो फर्मेंटेशन के अपने फायदे हैं. विच काइंड ऑफ अ फूड इज फर्मेंटेड एंड किस किस तरह के फूड को, अगेन जो हम फूड यहाँ पे वैसे कुक करके खाते हैं उसके भी फर्मेंटेशन करने के बाद भी हम खा सकते हैं, फर्मेंट करके खा सकते हैं. सो बेसिकली आपको याद रखना है कि यीस्ट जो है वो बेसिकली फर्मेंटेशन के लिए यूज होता है फूड की. ठीक है. एंड फर्मेंटेशन अपने आप भी हो जाती है जबकि वो अनडिजायरेबल होती है. देखो अब हमारा आटा नहीं है, कई बार जो आप खमीर की बात कर रहे थे अभी, समटाइम्स कहते हैं ना कि आटा खराब हो जाता है ना जब हम, मेरे को स्मेल आती है या कुछ होती है, बट कई लोग उसकी रोटियां खाते हैं बिकॉज वो फर्मेंटेड हो जाता है, अपने आप फर्मेंटेड हो जाता है. बट आई डिडंट, मेरे से वो कभी नहीं खाई जाती है बिकॉज उसका फ्लेवर, उसका टेक्सचर एंड उसकी स्मेल आई कैन नॉट बियर इवन दैट. ठीक है. बट सम पीपल दे से दैट्स अ गुड फॉर अ स्टमक, ऑब्वियसली बिकॉज वो फर्मेंटेड हो जाता है, दैट्स अ गुड फॉर. बट अगर किसी का टेस्ट ही डेवलप नहीं होता है, ही और शी कैन नॉट हैव, इवन आई कैन नॉट हैव दैट. सो इट्स अ प्रॉब्लमैटिक. ओके. बट समटाइम्स हम, ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी फर्मेंटेड फूड नहीं खाती हूँ. ठीक है. हम बहुत सारे फूड्स खाते हैं, जैसे वी गो फॉर हैविंग अ डोसा एंड आई रियली लव दैट डोसा एंड इडलीज एंड ऑल, उसका सारा बेटर होता है. अब उससे प्रॉब्लम नहीं होती है, उससे प्रॉब्लम होती है मुझे. ठीक है. वो अपने आप खमीर बनता है तो उससे होती है, मे बी दे हैव यूज्ड ईस्ट एंड ऑल. वो भी रात भर जब रखते हैं. अच्छा पता क्या है, हम नॉर्मली टेम्परेचर से भी फर्मेंट करते हैं. अब जब से डोसा बैटर बनाते हो या कुछ करते हो तो ओवरनाइट फर्मेंटेशन के लिए आप रख देते हो तो वो अपने आप फर्मेंट होता है. Because the microbacteria, particular kind of a microbacteria, they start growing into that. So they cannot, they actually ferment that. तो I can use that fermented. But आटा है, wheat जो है, अगर वो खराब हो जाता तो वो नहीं है. It depends upon. Some people they say that's good. I don't find that it's anything good in that. ठीक है. Because I don't like that. I don't like that aroma, that texture, and that appearance of that chapati. Because I really like that soft chapati. उनकी और ही फुली सी चपाती बन जाती है. ठीक है ना, बबली सी होती है, बबल्स आ जाते हैं बीच में. So I actually don't like. ये पर्सनल चॉइसेस भी होती हैं. वो गुड है, फर्मेंटेड फूड गुड है. कुछ अपने आप भी फर्मेंटेड हो जाते हैं, जैसे हम घरों में करते हैं कि रात को भिगो दो, है ना, सुबह बनाओ, उसके अगले दिन बनाओ, तो फर्मेंटेड. अब ढोकला भी ऐसी चीजों से ही बनता है, फर्मेंट करना पड़ता है. और हम क्या डालते हैं फर्मेंट करने में? इनो विनो भी तो डालते हैं ना, उसको फुलाते हैं कुछ फुलाने के लिए, इडली एंड ऑल. मैम इनो भी यूज होता है, समटाइम बेकिंग पाउडर भी यूज होता है फर्मेंटेशन. बेकिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज ही होती है ना इनो में, क्योंकि ये पीएच को अप करने में यूज होता है. व्हेनेवर यू वुड बी हैविंग द एसिडिक, बिकॉज ये बफरिंग कैपेसिटीज होती हैं इसमें, ये न्यूट्रलाइज करके हायर ले जाता है पीएच को. तो इनो भी वही होता है और बेकिंग सोडा भी वही चीजें होती हैं जो पीएच को एल्कलाइन, इनकी पीएच एल्कलाइन होती है. ठीक है. सो दे आर गुड फॉर, बिकॉज एल्कलाइन पीएच पे कुछ भी सर्वाइव नहीं करता, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. मुझे लगता है काफी लेक्चर्स में मैं बीच बीच में बात करती हूँ. जो पीएच होती है ना एल्कलाइन, उसमें तो कैंसर सेल्स तक सर्वाइव नहीं करती है. ठीक है. तो दैट्स गुड फॉर, आपको अपनी पीएच जो बॉडी की है, दैट यू हैव टू मेंटेन इट लाइक एल्कलाइन पीएच. ठीक है. तो एल्कलाइन पीएच को अगर आप मेंटेन रखेंगे तो आपको फिर बहुत सारी चीजें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अदर थिंग्स आल्सो, इवन आई टोल्ड यू द कैंसर सेल्स आल्सो, दे कैन नॉट जस्ट सर्वाइव, तो बाकी का ही सर्वाइव करेगा उसमें. सो एल्कलाइन पीएच, मेंटेनेंस ऑफ द एल्कलाइन पीएच इज मैंडेटरी फॉर द बॉडी इफ यू रियली वांटेड टू बी हेल्दी. ओके. अब ये देखो फर्मेंटेड फूड में इन्होंने प्रिपरेशन ऑफ द फूड, जो हम ब्रेड, ढोकला, इडलीज, हमने ऑलरेडी बात की है, इन चीजों के लिए ये यूज होती है. ठीक है. और स्पॉइलेज के लिए कुक जो फ्रूट जूसेस हैं, अगर उसमें हम थोड़ा सा शुगर का अमाउंट डाल दें तो हो जाती है फर्मेंटेशन. बेसिकली अब हम ये यीस्ट को लेके हम क्या कर रहे हैं, यीस्ट को लेके हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये फर्मेंटेड फूड यूज होता है ये फर्मेंटेशन के लिए.
तो हम किसी भी तरह से देख सकते हैं कि हमने क्या डाल के करना है, किसी में शुगर डाल के, किसी में सॉल्ट डाल के, किसी से अकेले यीस्ट डाल के, कईयों को सिर्फ ओवरनाइट डिप करके रखने पे भी मॉर्निंग में वो खुद ही दे कैन गेट फर्मेंटेड इटसेल्फ ओनली. So all these things, okay. So now we will be going to discuss the moles. So moles are the minute plants. इतने minute microscopic plants type होते हैं जो ऐसे नीचे बड है, ऊपर कैप टाइप ग्रो कर जाते हैं, ठीक है. लेकिन ये कहाँ ग्रो करते हैं? वार्म, डैम्प एंड डार्क प्लेसेस पे ही ग्रो करते हैं. तो अगर आपके फूड आइटम्स कहीं वार्म टेम्परेचर और डैम्प मॉइस्चर वाली और डार्क स्पेसेस पे पड़े हैं, देन दे कैन ग्रो. मोल्ड्स ग्रो कर जाते हैं. दे लुक टेरिबली अगली व्हेन दे ग्रो ऑन अ फूड. मतलब फूड की क्वालिटी को इतना अगली बना देते हैं, ये खुद भी अगली ही होते हैं, ठीक है. ब्लैक हेरी सी ग्रोथ हो जाती है ब्रेड पे, ठीक है. ग्रे फजी ग्रोथ होती है चीज पे, ठीक है. ग्रे सी गंदी सी स्टिकी सी ग्रोथ हो जाती है इवन ब्रेड्स पे, अगर चीज पड़ा रहे उस पे हो जाती है, ठीक है. तो ये जो ग्रोथ होती है ना, स्लाइटली फिजिकली रिमूव हो जाती है चीजों से. एंड क्योंकि जैसे ऊपर ऊपर ग्रो कर गई ना, आप काफी मोटी लेयर नीचे से ऊपर से काट दोगे तो बाकी मटेरियल को आप यूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत डीप ग्रो नहीं करते हैं, ये ऊपर ऊपर ग्रो करते हैं. बट समटाइम्स आपको देखना पड़ता है, मे बी लिटिल बिट है, उसकी थोड़ी मोटी लेयर को रिमूव करना पड़ता है ऊपर से, ठीक है. तो ग्रोथ ऑफ द मोल्ड इज हैवी एंड होल मैस ऑफ द फूड मे बी चेंज्ड ड्यू टू फ्लेवर एंड द टेक्सचर. लेकिन हाँ, ये जब फ्लेवर टेक्सचर को यूज करेंगे चेंज, तो ऊपर ऊपर वाला नहीं है, नीचे वाला भी चेंज हो सकता है. आपको देखना पड़ेगा कि कितना ग्रो हो गया और कितना हम काट के बाकी को यूज कर सकते हैं, बाकी पीस को. जैसे पनीर है, उसके ऊपर ग्रो कर गया तो वी कैन एक्चुअली, ब्रेड्स में सारी ब्रेड में ग्रो नहीं किया, मे बी ऊपर ऊपर वाली ब्रेड पे ग्रो कर गया, तो वी कैन एक्चुअली थ्रो दोज पीसेस ऑफ द ब्रेड एंड देन, ठीक है. बट यू हैव टू मेजर ऑब्जर्व इट केयरफुली, क्योंकि समटाइम्स अगर नीचे वालों पे थोड़ी ग्रोथ होगी तो वो आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है. तो फॉर्चुनेटली क्या है कि जो मोल्ड है ना, अगर वो लार्ज क्वांटिटी में भी ग्रो कर जाते हैं तो वो बहुत विजिबल हो जाते हैं एंड नोटिसेबल फ्लेवर पहले ही आ जाता है. और अगर हम थोड़ा सा भी खा भी जाए ना, तो पता चल जाता है कि नहीं नहीं इसमें कुछ गड़बड़ है, ठीक है. सो दे आर द फ्यू मोल्ड्स प्रोड्यूस टॉक्सिक मटेरियल, माइकोटॉक्सिन्स एक्चुअली प्रोड्यूस करते हैं मोल्ड्स, माइकोटॉक्सिन्स एंड एफ्लाटॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय द मोल्ड्स ग्रोइंग ग्राउंडनट्स इज वन ऑफ द एग्जांपल. आपको ग्राउंडनट्स जो होती है ना, वो थोड़ी देर बाद ना अगर आपके पास काफी देर पड़ी रहे तो उनके ऊपर उनका फ्लेवर भी चेंज हो जाता है, मूंगफली के दानों का, ठीक है, बिकॉज उसके ऊपर एफ्लाटॉक्सिन्स ग्रो कर जाते हैं. सो यू शुड नॉट हैव दोज अगर ज्यादा देर तक करना. सो अगर आपको बैक्टीरिया का पता चल गया, यीस्ट मोल्ड्स का पता चल गया है कॉमन, क्योंकि हमने क्या कहा था, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मेनी काइंड ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बट हमने बताया था कि इसमें से यही सबसे ज्यादा यीस्ट और बैक्टीरिया, यीस्ट एंड मोल्ड्स, ठीक है, ये ज्यादा कॉमन होते हैं जो कि स्पॉइलेज ऑफ फूड करते ही करते हैं, ठीक है. जो सबसे पहले साइट, स्मेल और टेस्ट से पता चल जाता है. There is a special kind of the food spoilage that does not change the sensory properties. लेकिन ऐसे भी कई सारी चीजें हो जाती हैं जिसमें ना वो जो हमने सेंसरी प्रॉपर्टीज की बिगिनिंग में बात की है, पहले तो 4 की बात की थी, न्यूट्रिशन वाली सेंसरी में नहीं आती है न्यूट्रिटिव वैल्यूज, बट वी कैन ऐड इट बिकॉज फाइनली जो सेंसरी प्रॉपर्टीज हैं 4, वो अगर चेंज होगी तो न्यूट्रिटिव वैल्यू चेंज होगी, ठीक है. बट सेंसरी प्रॉपर्टीज अगर आएंगी तो उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यूज नहीं लिखेंगे, बट हाँ 4 सेंसरी प्रॉपर्टीज चेंज होने से न्यूट्रिशन वैल्यू में चेंज आती है. तो फूड एंड देयरफॉर कैन नॉट बी डिटेक्टेड. अब क्या है कि कई बार ऐसी ग्रोथ से ना सेंसरी प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आती है और हमें पता नहीं चलता कि इस अरोमा या स्मेल और टेक्सचर और में चेंजेस आई हैं, ठीक है. अपीयरेंस में हम कई बार खा लेते हैं, हल्का सा चेंज लगता है तो हम वो, हमारे लिए वो मैटर नहीं करता कि नहीं थोड़ा सा फर्क पड़ा है, ज्यादा नहीं है, तो हम खा लेते हैं. बट समटाइम्स क्या होता है कि वो चेंजेस नहीं आई होती है पर ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, तो उस केस में वो बहुत डेंजरस हो जाता है और हम खा लेते हैं. सो दैट कैन लीड टू अ वेरी dangerous effects to your digestive system. Okay, now we have discussed all the microorganisms. So the next जो मैंने discuss किया था ना, the natural food enzymes को जो मैंने बताया था, ठीक है, कि enzymes हैं, अगर आपकी जो चीजें अंदर food items spoiled जाएंगी तो enzymes, they are not working on that because they are very clever and they are very particular and they are very intelligent to identify their substrates. Okay, so जब वो अपने substrate को देखते हैं कि that's a spoiled one, then they won't work on that. They really want to have that healthy kind of a food item or their particular substrates.
तो डाइजेशन नहीं होगी तो और एक्सैचुरेट हो जाएगी चीजें, पहले ही खराब खा लिया, दूसरा वो डाइजेस्ट नहीं होगी विद द एक्शन ऑफ द एंजाइम्स, आई मीन विदाउट द एक्शन ऑफ द एंजाइम्स, सो वो अनडाइजेस्टेड रह जाएगा तो उससे और प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। सो फूड एंजाइम्स आर न्यू टर्म फॉर यू। अब यहाँ पे फूड एंजाइम्स की बात आ गई है, दे आर न्यू टर्म है आपके लिए नहीं है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जब हम डाइजेशन की बात करते आते हैं ऑलवेज टॉक अबाउट द एंजाइम्स, बिकॉज डाइजेशन एंड एंजाइम्स के बगैर डाइजेशन का मतलब ही नहीं है। अगर आपने कुछ खाया वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, एंजाइम डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर जिंदगी ही क्या है, मतलब रोल ही क्या है, ग्रोथ डेवलपमेंट, हम किसकी बात करेंगे? कुछ भी नहीं, खाया डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, पावर एनर्जी नहीं मिल रही है, डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है ना, तो विदाउट एंजाइम्स तो न्यूट्रिशन की बात करना, खाने की बात करना मतलब ही नहीं है। So the role of the enzyme in the process. So you are familiar with the role of the enzyme in the digestion, in the process of the digestion. All healthy, अगर हम बात करें फूड की, healthy word. Food plants से, animals से have their own set of enzymes and help in the process to go inside the living cells. अब ये बात ये कर रहे हैं कि we have a plants based enzymes also. जब हम कोई खाना खाते हैं तो we eat the enzymes also, because जैसे हम पेपेन है, पपाया में होता है और पाइनएप्पल में होता है, तो इनमें अपने एंजाइम्स भी होते हैं। व्हेनेवर वी टेक ना, तो वो एंजाइम्स डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हम कई बार खाते हैं ना कि ये चीज़ खाओ इसके बाद ये खाओ तो डाइजेशन में हेल्प होएगी, ठीक है। सो कुछ ऐसे बेस्ड, सो वो डाइजेशन में, फिर रेस्पिरेशन में, जर्मिनेशन में भी हेल्प करते हैं। लेकिन अभी हम बात करते हैं सिर्फ डाइजेशन की। व्हेनेवर वी हैव अ फूड एंड वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ फूड आइटम, चाहे वो किसी भी सोर्स से है, दैट हैज एंजाइम्स, and if we'll have that enzyme, we'll eat that particular food item with the other food items, and then we'll be having the good digestive system, digestion और digestion अच्छी हो जाएगी, और हमारे digestive system के लिए that food would be good। और फूड कौन सा गुड होता है? जो डाइजेस्ट कर देता है और जो बाकियों की भी हेल्प करता है, जो हमने अदर आइटम्स खाई हैं डाइजेशन करने की, ठीक है। सो इनमें क्या होता है कि एंजाइम्स कंटिन्यू टू रिमेन एक्टिव इवन आफ्टर द प्लांट हैज बीन हार्वेस्टेड एंड द स्लॉटर्ड, द प्रोसेस दे विल कंटिन्यू। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे पपाया की बात कर ले हम, या पाइनएप्पल की बात कर ले। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि उसको हमने पेड़ से तोड़ लिया है, अगर ट्री से भी हैव टेकन इट एंड हम उसको स्लॉटर करके खा रहे हैं, तो एंजाइम्स इंटैक्ट रहते हैं काफी देर तक, ठीक है। बट कुछ टाइम तक ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि करके हम पता नहीं महीने बाद खा रहे हैं तब भी इंटैक्ट रहेंगे। नो, द एंजाइम्स दे आर वेरी पर्टिकुलर and they cannot actually survive on the adverse conditions, okay। so लेकिन हम लाते हैं फूड, तो हम 2-4 दिन का ही फूड लाते हैं ना, हफ्ते की सब्जी लाते हैं तो फूड लाते हैं, तो हमें कुछ फूड का ख्याल रखना चाहिए कि इसमें ये अवेलेबल होता है, तो इस फूड को इसके साथ खाओ तो ये खुद भी डाइजेस्ट करेगा, बट इस फूड में ऐसा एंजाइम है जो बाकी फूड जो हम खा रहे हैं उसको भी डाइजेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। बट कहते हैं कि कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं, जैसे पपाया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑफ द पपाया, कस्टर्ड एप्पल एंड मैंगोज, टोमेटोज, आफ्टर हार्वेस्टिंग क्या होते हैं कि कुछ डिग्री तक ही इसमें एंजाइम्स इनके या ठीक रहते हैं, तो काफी अगर ज्यादा ओवर राइपनिंग हो जाएगी देन दे वोंट वर्क। जैसे टोमेटोज हैं, काफी ज्यादा पक जाएंगे देन दे आर नॉट गुड फॉर ईटिंग, ठीक है। सो ओवर राइप बनानास एंड पपायाज आर ओवर लेफ्ट matured tasteless corn and peas in the market for example of the deterioration of the present enzymes। तो मतलब ज्यादा ओवर राइपन वाले नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ द डिटीरियोरेशन ऑफ द फूड आइटम्स इन द फील्ड ऑफ द ट्रांसपोर्ट में भी कई बार हो जाते हैं, तो एंजाइम एक्शन खराब हो जाते हैं। देखो, अगर स्टोरेज भी प्रॉपर नहीं है उसकी स्पिलेज एंड ओवर राइपनिंग अगर ट्रांसपोर्ट में भी होगी देन ऑल्सो दे आर नॉट ऑफ एनी यूज, ठीक है। तो और समटाइम्स क्या है कि हमें ट्रांसपोर्ट में जब आते हैं ना, ट्रांसपोर्ट में कम टाइम लगना चाहिए और चीज़ें हमारे तक हेल्दी चीज़ें पहुंच जानी चाहिए, सो दैट मिनिमम डिटीरियोरेशन हुई हो उनमें, और जो एंजाइम्स हैं दे शुड बी इंटैक्ट, सो दैट इफ विल टेक इट सो दे विल हेल्प इन डाइजेशन, ओके। सो और दूसरी बात होती है कि स्पॉइलेज में, अब यही बात बताई ना हमने, सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कस किए, देन दी नेचुरल फूड एंजाइम्स को डिस्कस किया। Now we are going to discuss about the insects and the rodents, okay। so they are particularly destructive to the cereals, grains and fruits and vegetables। obviously कहीं भी जाएंगे खाएंगे खराब करेंगे। इनमें क्या आ जाते हैं ज्यादातर? worms, bugs, weevils and the moths may damage the food items both in the field में भी खा जाते हैं ये,
ठीक है, स्टोरेज में भी खा जाते हैं, कहीं भी आ जाते हैं, तो इनको डैमेज सो देयर बाय। और दूसरी बात ये पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, खुद भी आते हैं और बैक्टीरिया को भी अपने साथ लाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया, यीस्ट, मोल्ड्स, इन्फेक्शंस भी फूड को करके चले जाते हैं। A small insect hole in the mango can result in the total decay of the mango from the अब देखो ना, थोड़ा सा भी बाइट करेंगे, वहां पे बैक्टीरिया छोड़ गए, खुद तो भाग गए थोड़ा सा बाइट करके खा के, बट ये नहीं है कि अब सारा का सारा बैक्टीरिया उस पूरे मैंगो को स्पाइल कर देगा। ठीक है, सो द प्रॉब्लम विद द rodents involve not only the quantity of the food they may consume, also they filth, खराब कर जाते हैं उसको। ठीक है, एंड दे कंटेमिनेट कर जाते हैं, फिल्थी कर जाते हैं फूड को बाय कंटेमिनेशन ऑफ द फूड। ओके, सो रोडेंट का जो यूरिन है ना एंड द ड्रॉपिंग्स जो हार्बर करती हैं सेवरल काइंड्स ऑफ द डिजीज प्रोड्यूसिंग द बैक्टीरिया, ठीक है, विच इन्फेक्ट द ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। कहीं भी ये यूरिन पास कर देंगे, ऑब्वियसली खाना खाते हैं तो वो भी खराब करते हैं। तो ऑलमोस्ट 10% ऑफ द लॉसेस ऑफ द ग्रेन्स इन द फार्म्स इन आवर कंट्रीज, रोडेंट्स एंड बर्ड्स ये रिस्पॉन्सिबल हैं। 10% तो कौन करते हैं, इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स, एंड बर्ड्स भी 6% खराब कर देती हैं हमारा जो फूड आइटम्स हैं। ठीक है, तो स्पॉइलेज ऑफ फूड जितना भी इन्होंने आई मीन जो भी करके देखा हुआ है हिसाब किताब लगा के कि कितना कितना स्पॉइलेज ऑफ फूड ये करते हैं। ठीक है, सो फैक्टर्स अफेक्टिंग द फूड स्पॉइलेज अब कौन से हैं? सबसे पहले तो हमारा आता है टेम्परेचर। ठीक है, अगर टेम्परेचर थोड़ा भी ज्यादा हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक्चुअली ग्रो करने का एक टेम्परेचर होता है जो ऑप्टिमम होता है, उस पर भी खूब ग्रोथ होती है उनकी। ठीक है, क्योंकि कल्चर में तो वो आ ही गए, ठीक है, कंटेमिनेट कर दिया और उनको टेम्परेचर भी मिल गया, तो बस फिर उनकी ग्रोथ दी बेस्ट होती है टेम्परेचर पे विच मल्टीप्लाई, जहाँ पे वो रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऑलमोस्ट एक्टिव होते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर है तो माइक्रोबियल ग्रोथ जो है और एंजाइमिक एक्शन है वो प्रिवेंट हो जाता है डिक्रीजिंग दी ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर डिक्रीज कर दोगे तो फिर वहां पे उनकी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, सो नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमने टेम्परेचर से फूड की स्पॉइलेज को बचाना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना ग्रो कर, तो फ्रीजिंग और द चिलिंग, इसीलिए बने हुए हैं ना फ्रिज, इसीलिए हम बाहर नहीं रखते हैं, तो इसको लो टेम्परेचर पे दे वोंट ग्रो। ठीक है, फ्रीजिंग प्रोसेस किलिंग द इफेक्टिव बैक्टीरिया टू कंटिन्यू। इसकी स्टोरेज के लिए फूड कैन आल्सो बी स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर्स हैज अ लोअर टेम्परेचर एंड हाउएवर नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम नहीं, बट हाँ काफी देर के लिए जब तक हमने कंजम्पशन करनी है, कंज्यूम करना है, सो वी कैन एक्चुअली पुट दैट फूड इनटू द फ्रिज एंड ऑल और द लोअर टेम्परेचर्स so that till the time we can consume, so the microorganisms, so we can save our food items from the growing for the microorganisms. Okay, so the microorganisms, they cannot grow, they should not grow, they could not grow on that. Okay, so the remember that the excessive heat as well as the cold can cause the deterioration of food. देखो optimum temperature पे ही survive करेगा, बहुत ज्यादा अगर cold कर दोगे then also it would deteriorate the nutrition quality। अगर microorganisms नहीं grow करते हैं but the nutrition quality deteriorate हो जाती है, और heat पे तो microorganisms grow करते हैं खूब। ठीक है, सो एक दूसरी बात ये होती है कि हमारी जो excessive heat can destroy the proteins and the vitamins, और ड्राई कर देते हैं फूड आइटम्स को, रिमूविंग दी मॉइस्चर, क्योंकि उससे बिल्कुल ही मॉइस्चर निकल जाता है, जो वाटरी कंटेंट होता है फूड में से बिल्कुल ही ड्राई हो जाता है बहुत ही हीट पे। तो सिमिलरली एक्सेसिव कोल्ड इफ नॉट कंट्रोल ड्यूरिंग द फ्रीजिंग ब्रेक्स ऑफ द सेल वॉल्स ऑफ द मेम्ब्रेन्स ऑफ द फूड, मतलब जो सेल्स हैं, सारे फूड हमारे सेल्स के ही बने होते हैं, अगर ब्रेकेज हो जाती है तो उसके आइटम सारा न्यूट्रिशन बाहर आ जाता है, तो फायदा नहीं है, कोई वो इंटैक्ट नहीं रहता क्योंकि मेम्ब्रेन ही ब्रेक हो गई है। ठीक है, सो थॉइंग, और जब हम बहुत बार हम फ्रीजिंग रखते हैं ना, फ्रीज करते हैं हम अपने फूड आइटम्स को, तो फ्रीजिंग करने के बाद क्या होता है कि हम बाहर निकालते हैं, फिर से वो थॉ हो जाता है क्योंकि वो फ्रोजन होती है, फिर से थॉइंग हो जाती है ना, मेल्ट हो जाती है, फिर से हम थोड़ा सा करते हैं, फिर से फ्रीजिंग के लिए रख देते हैं, फिर से वो जो कंप्लीट अगेन फ्रीजिंग थॉइंग से जो सेल वॉल्स होती हैं ना किसी भी फूड आइटम्स की, बिकॉज एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ द फूड सेल्स, तो उसमें से उसकी फ्रीजिंग थॉइंग से ब्रेकेज हो जाती है, जिससे उसका न्यूट्रिशन कंटेंट दैट वुड बी स्पिलेज आउट ऑफ दैट दोज सेल्स, जहां से भी जाना होता है तो वो कंटेंट खत्म हो जाता है, सो उसका कोई बेनिफिट नहीं बचता। ठीक है, और एक तो ये था कि एक्सेसिव विटामिन्स एंड ऑल वो सब उसके आई मीन द न्यूट्रिटिव कंटेंट कंटेन इन दो सेल्स then contained in as material or the food material that would be not of usage anymore. So the moisture and the dryness, इसमें क्या होता है, excessive moisture or the dryness plays a very significant role in the optimal activity of the stored foods. ठीक है,
क्योंकि foods are the best when they are moist, deteriorate and drying so that they keep the dry, and the deteriorate when they are moist. Okay. एंड मॉइस्चर जो होता है ना वो नेसेसरी होता है ग्रोथ एंड माइक्रो. मैंने आपको बताया कि वाटर कंटेंट जितना ज्यादा होगा उतना ही ग्रो करने के लिए, एंड द टेम्परेचर अगर ज्यादा हो गया तो प्लस हो गया सारा, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाता है. ठीक है. और एंजाइम एक्शंस के लिए भी. ठीक है. मॉइस्चर अगर किसी भी फूड का है तो उससे मल्टीप्लिकेशन ऑफ द माइक्रोबैक्टीरिया वुड बी मोर. ठीक है. तो इन चीजों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा. एयर एंड ऑक्सीजन से क्या होता है कि विटामिन जो होते हैं ना बेसिकली किसी भी फूड आइटम में होते हैं, ए एंड सी पर्टिकुलरली, जो फूड कलर्स फूड फ्लेवर्स में, वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं एक्सपोज्ड व्हेनेवर दे आर एक्सपोज्ड टू द एयर और द ऑक्सीजन, बिकॉज इनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है. ठीक है. ऑक्सीजन ऑल्सो हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द मोल्स. इन पैकेज्ड फूड में क्या होता है कि एफर्ट्स इज मेड टू रिमूव द ऑक्सीजन एंड वैक्यूम करके, अगर कोई फूड पैकेज में होता है ना, कोई वैक्यूम किया हुआ होता है तो वहां पे वो कंटेंट में एयर नहीं आती है और ऑक्सीजन जो होती है वो उसको डिटीरियोरेट नहीं कर पाती है. ठीक है. वैक्यूम जहां होता है, लेकिन हर जगह वैक्यूम नहीं ना होता. जो पैकेज इंडस्ट्रियल फूड आता है दे आर द वैक्यूम वंस, उसमें स्टोर्ड होता है, उसमें खराब नहीं होता फूड. ठीक है. सो इन पैकेज फूड एफर्ट्स इज मेड टू रिमूव द ऑक्सीजन बाय द वैक्यूम और बाय फ्लशिंग द फूड कंटेनर्स विद द नाइट्रोजन और द कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाल के इनको करते हैं. ठीक है. एंड स्टोर करते हैं. सो एयर ऑल्सो ड्राइज अप द फूड. अब क्या होती है कि ये वाली जो एयर होती है ना, ये भी एक्चुअली ड्राइंग कर देती है फूड आइटम्स को, तो उससे भी लॉस ही होता है. सो हमें जो पैकेट फूड्स हैं या मार्केटेड वाले हैं वो भी कम खाने चाहिए. वी डोंट प्रेफर हैविंग दोस काइंड ऑफ फूड्स. भी हम प्रेफर करते हैं कि घर में अच्छे ढंग से ताज़ा बना के खाना कुक करके खाया जाए, ना ही हम स्टोर खाएं ना ही हम पैकेज्ड खाएं. सो इफ यू वांट टू हैव द आई मीन न्यूट्रिशन फ्रॉम द फूड्स. ओके. सो हमें तब ये भी देखना पड़ता है कि कौन से ग्राउंड से आ रहा है, वो अच्छी जगह उगाया गया था गंदगी में, मतलब डिपेंड करता है हमें सारा कुछ लेने पे, और फ्रेश फूड बना के खाने में ही अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है. ठीक है. अच्छा, लाइट का क्या रोल होता है? विटामिन जैसे पर्टिकुलरली राइबोफ्लेविन है, विटामिन ए, सी एंड मेनी फूड कलर्स दे आर डिस्ट्रॉयड बाय द लाइट. जो लाइट सेंसिटिव हैं, अब हमने विटामिन वो लेने हैं, अब इतना लाइट में स्टोर किया हुआ है या लाइट में पका रहे हैं तो वो विटामिन खत्म हो जाते हैं उसमें से. सो सेंसिटिव फूड्स है ना जो, उनको हमें लाइट से बचा के रखना होता है. खासकर जो राइबोफ्लेविन है, विटामिन ए एंड सी है, इनको बचा के रखना होता है. सी को तो एयर से भी बचा के रखना होता है, ऑक्सीडेशन हो जाती है, और इसको लाइट से भी बचा के रखना क्योंकि ये डिटीरियोरेट हो जाते हैं. ठीक है. सो वैसे भी इन चीज़ों को हम ज़्यादा colored bottles में store करते हैं so that we can actually save it from the direct light. Okay. अब टाइम की बात अगर आती है तो टाइम, any food which is at the peak quality of certain time it is harvested, slaughtered and the manufactured, and in a very short time harvest हो जाता है peas and fresh corns and all. अब ये कह रहे हैं कि सपोज अगर किसी भी फूड को हम बिल्कुल उसकी ग्रोथ के पीक टाइम पे ही काटते हैं, उसको सेव करते हैं, उसको धो के अच्छी पैकेजिंग हो जाती है और वो ठीक टेम्परेचर पे ठीक टाइम पे बिल्कुल सेव हो जाता है, एंड देन विल हैव लाइक फ्रेश पीज हम देखते हैं, फ्रेश कॉर्न्स हमें मार्केट में मिलते हैं. पर डिपेंड करता है कि उनकी ग्रोथ जो हुई थी वो प्रॉपर हुई थी फील्ड्स में, एंड देन वो अगर कट हुए हैं तब भी प्रॉपरली हुए हैं या नहीं हुए हैं, और फिर वो प्रॉपरली स्टोर हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और प्रॉपर टेम्परेचर पे वो पैकेज्ड हो के स्टोर टाइमली हो गए हैं या नहीं हो गए हैं. क्या पता वो इस सारे प्रोसेसेस में उनका न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो गई है, और जब हम मार्केटेड लेते हैं तो हम सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छी हेल्दी चीजें खा रहे हैं, बट वी डोंट नो कि हाउ मच न्यूट्रिशन इज लेफ्ट whenever they were slaughtering and whenever they were packaging and whenever they were storing. वो कितनी देर बाहर हीट पे पड़े रहे और कितनी देर बाद. ओके. सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू सी, बिकॉज उसमें उनकी बड़ी सारी सी चीजें हैं जो खराब हो जाती हैं. ठीक है. एंजाइम से फर्क पड़ जाता है, एंजाइम्स और मल्टीविटामिन्स हैं जो उसमें स्टोर्ड हैं, तो वो भी बचे हैं या नहीं, और किस क्वांटिटी में बचे हैं, कितने अमाउंट में बचे हैं, फिर अपने घर तक लाते हुए वो जो बचा कुचा भी था वो भी खराब हो गया या नहीं हो गया. ठीक है. अब हम बात करेंगे पेरिशेबिलिटी, फूड बेस्ड ऑन द पेरिशेबिलिटी. तो हमारे पास फूड स्टफ्स होते हैं जैसे कि पेरिशेबल फूड्स होते हैं, सेमी पेरिशेबल होते हैं, नॉन पेरिशेबल होते हैं. ठीक है. पेरिशेबल फूड्स में क्या आते हैं कि दीज फूड्स विच स्पॉइल इजीली. ठीक है. जैसे एनिमल फूड्स हो गए, मीट, फिश, पोल्ट्री, हम इनको बाहर नहीं रख सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स को बाहर नहीं रख सकते हैं,
वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं, बिकॉज इनको हम बहुत देर तक अगर हम फ्रिज में ना स्टोर करें या हम कुक ना करें तो ये स्पॉइल होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। विद इन द 3-4 आवर्स स्पॉइल होने शुरू हो जाते हैं। जैसे वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हैं वो भी स्पॉइल हो जाते हैं, जैसे फ्रेश लीव्स हैं, जैसे लेटिस होगी या सैलेड लीव्स हो गए, कोरिएंडर हो गई है, गार्डन से जो लीव्स हैं जैसे स्पिनच है, इसको भी हम ज्यादा देर बाहर नहीं रख सकते हैं। सेमी पेरिशेबल में होता है कि ये लिटिल बिट पेरिशेबल से लिटिल बिट मोर आवर्स तक थोड़ा सा सरवाइव कर जाते हैं, ठीक है। एंड स्पिलेज कपल ऑफ वीक्स तक चल जाती है, फ्यू मंथ्स तक भी शायद चल जाएगी। जैसे इसमें आ जाते हैं व्हीट फ्लोर है, जैसे हमने उसका आटा बना लिया व्हीट का, व्हीट के सीड्स भी पड़े रहते हैं। पोटैटोज, अनियंस, गार्लिक हम बाहर रखते हैं। इवन एप्पल्स दे कैन एक्चुअली सर्वाइव, इवन सिट्रस फ्रूट्स इन अ फ्रूट फॉर्म, ठीक है। फैट्स एंड ऑयल्स, रिफाइंड ऑयल्स, ये भी हम बाहर रखे रहते हैं, तो दे कैन एक्चुअली सर्वाइव, ठीक है। एंड बट नॉन पेरिशेबल में है कि बिल्कुल ही जो नहीं होते, जैसे सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गई, शुगर हो गई, इस कैटेगरी में। शुगर भी तो शुगर केन से बनती है, बट वो एक ऐसी फॉर्म में आ जाती है, उसको हम सालों, वो कभी भी खराब नहीं होगी, ठीक है। सो दे डू नॉट स्पॉइल अनलेस अगर हम हैंडलिंग उसकी प्रॉपरली नहीं करते हैं इन चीजों की, तो अदरवाइज ये 2-2 साल 3-3 साल पड़े रहते हैं हमारे पास, सीरियल्स होते हैं, ठीक है। सो इन चीजों की, इनमें खराबी नहीं आती है। इनमें खराबी कब आती है? व्हेनेवर वी प्रोवाइड द मॉइस्चर, अगर कहीं से आ जाए, ठीक है, ह्यूमिडिटी हो जाए, कंटेनर में ह्यूमिड आ गया, अगर ये ड्राई कंटेनर्स में प्रॉपरली ड्राइंग कंडीशन में स्टोर्ड है, देन देयर आर नॉट एट ऑल चांसेस ऑफ द spoilage of these kind of the food which comes into the non perishable category. So all these types of the food you have to remember, ठीक है। सो फूड स्टोरेज क्या है कि प्रॉपर जो फूड स्टोरेज है वो सबसे पहला स्टेप है, खाने का बना लिया, ले आए, बट स्टोर प्रॉपर नहीं करेंगे तो हम न्यूट्रिशन की बात ना ही करें तो अच्छा, बिकॉज अगर स्टोरेज ही नहीं है प्रॉपरली तो उसमें न्यूट्रिशन कंटेंट डिपेंड करता है कि बचेगा कि नहीं बचेगा। एंड दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द कैटेगरी ऑफ द पेरिशेबल फूड्स की किसको किस तरह से स्टोर करना और इसमें कितना कंटेंट बचेगा, ठीक है। तो पेरिशेबल और 3 कैटेगरीज जो हैं हमारी, और चौथा मॉइस्चर कंटेंट का ख्याल रखना है, 5वां हमें टेम्परेचर का ख्याल रखना है, ठीक है। फिर उसकी क्लीनिंग का भी ख्याल रखना है, स्टोरेज का ख्याल रखना है, कोल्ड स्टोरेज का ख्याल रखना है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ, मोल्स की, यीस्ट की, किसी भी तरह, ये सारी चीजें हमें ख्याल रखनी ही पड़ती हैं। सो इफ रियली वांटेड टू मेंटेन द न्यूट्रिशन क्वालिटी ऑफ दैट फूड, इवन हम मन में वहम ही होता है वो, अगर हम मार्केट से कोई कॉर्न्स लाते हैं, फ्रोजन कॉर्न्स लाते हैं, हम उनको खा रहे हैं, कॉर्न्स आर वेरी गुड, बट हमें पता ही नहीं है कि वो कब पैक हुए थे, कब काटे गए थे, कितनी देर पैक किए थे और कितनी देर बाहर पड़े रहे, कितनी देर उनकी प्रॉपर स्टोरेज थी, क्योंकि दे शुड बी एक्चुअली स्टोर्ड एट द कोल्ड स्टोरेज ऑल्सो, ठीक है। तभी उनका कंटेंट जो है वो मेंटेन रहेगा। न्यूट्रिशन कंटेंट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ओके। सो अगर लॉस ऑफ ग्रेन्स क्रॉप एंड द हार्वेस्ट में भी हो जाती है 5 to 10% ऑफ द प्रोडक्शन in the developed countries, 50% more in case of some of the developing countries, and waste हो जाता है सारा कंटेंट की जब हम कट करते हैं ना, उसके बाद स्टोरेज तक लाते फिर वेरियस कंडीशंस, ठीक है। कई बार गोडाउन्स में पड़ी हैं, मॉइस्चर आ गया, उसका भी आटा पिसवा के ड्राई दे देते हैं, पता नहीं फंगस ग्रोथ ही क्या था, फिर आप खाते हो, बिकॉज अब इन चीज़ों पे हमें रिलाई करना पड़ता है। इसीलिए तो कई लोग सिर्फ वीट खरीदते हैं और खुद उसको साफ सुफ करते हैं, एंड देन दे गेट इट, आई मीन मेक इट अ फ्लोर इन फ्रंट ऑफ देम, ओके। सो वो क्या होता है कि उसके बाद फिर वो खाते हैं, तो मतलब जस्ट टू मेक श्योर दैट द न्यूट्रिशन क्वालिटी, अदरवाइज मार्केटेड में से आप पैकेज लेते हो उसका आपको पता नहीं है। कंपनीज तो बहुत चार्ज करती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फन कंपनीज हैं जो कहती हैं ऐसे हम करते हैं, ऐसे हम करते हैं, ये क्वालिटी है इसमें, ये कुछ है। सो देखो, क्योंकि देखा नहीं है, खरीदते हैं, तो वी कैन नॉट एक्चुअली से एनीथिंग अबाउट दोस, ठीक है। सो अब हमारे पास मेथड्स ऑफ स्टोरेज है, ठीक है। अब हमारे पास क्योंकि 3 काइंड ऑफ फूड्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरेज ओनली, जो है पेरिशेबल, सेमी पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल, ओके। सो अगर हमें स्टोरेज करना है नॉन पेरिशेबल, तो हमें पता ही है कि सीरियल, पल्सेस, शुगर, सॉल्ट्स हैं, टैमरिंड है, इन चीज़ों को हम बड़ी इजीली स्टोर कर सकते हैं एक ड्राई कंटेनर्स में, बड़े बड़े कंटेनर्स में ड्राई करते हैं। और लेकिन हमें स्पेस भी देखनी पड़ती है, फैसिलिटीज देखनी पड़ती हैं,
ठीक है। और हमें इनको हम बेसिकली हम लार्ज क्वांटिटीज में खरीद भी सकते हैं, क्योंकि हम इनको स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हम यूजुअली व्हीट खरीदते हैं, आटा भी हम बनवाते हैं, व्हीट फ्लोर, मैदा भी, सूजी भी, है ना, इन चीज़ों को हम लार्ज क्वांटिटी में बनवाते हैं। और सीरियल्स को, पल्सेस को भी हम लेते हैं, तो वो लार्ज क्वांटिटीज में हम सेव कर सकते हैं, बिकॉज उनकी स्टोरेज भी लार्ज क्वांटिटीज वाली हम तकरीबन घरों में होती है, विलेजेस में तो बहुत बड़ी बड़ी होती है। ठीक है। सो प्रिकॉशन अगर हमने लेनी है इन केस ऑफ द नॉन पेरिशेबल फूड्स को स्टोरेज कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए, सो सबसे पहले तो उनको केयरफुली रिमूव करना चाहिए, रिमूव द ग्रेवल और द हस्क, ठीक है, और या फिर और कोई जो मैटर लगा हुआ है, क्योंकि इनको भी कीड़ा खाना शुरू कर देता है। आपको पता है व्हीट गेट ऑल्सो कीड़ा लग जाता है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज का कीड़ा होता है। ठीक है। मेज स्टोर करते हो, राइस स्टोर करते हो, तो इनकी भी प्रॉपरली स्टोरेज के लिए, ठीक है। सो अगर जहाँ भी जो भी कंटेनर है उसकी लिड को या एल्यूमिनियम, प्लास्टिक या ग्लास के कंटेनर्स में सेव करना है, ये सब हमें देखना पड़ता है। ठीक है। सो स्टोर रूम में स्टोर करना है या कपबोर्ड में, किचन में कहीं रखना है, बड़ा है कंटेनर, छोटा है, डिपेंड करता है। सो स्टोरेज स्पेस जो है वो किचन से कई बार अवे होनी चाहिए। व्हीट ग्रेन्स की, जैसे व्हीट ग्रेन्स है, राइस की थोड़ी सी, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो किचन में ज्यादा हो जाता है समटाइम्स बिकॉज ऑफ दी बर्निंग ऑफ दी आपकी गैस चूल्हा एंड ऑल। ठीक है। सो इन चीजों का अब अगर स्टोरेज ऑफ द सेमी पेरिशेबल देखें, तो उसमें अगर हमारे सीरियल प्रोडक्ट्स हैं तो उनको हम फ्लोर्स बना के, सॉरी, डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक डिफरेंट फ्लोर्स एंड वर्मिसेली है, सेमोलिना है, एंड ये और फ्लेवर प्रोड्यूस कर जाते हैं अगर इंसेक्ट्स भी इन पे लग जाएं। ठीक है। तो इनको भी टाइट कंटेनर्स में या फिर थोड़ी देर धूप में सुखा के, फिर टाइट कंटेनर्स में इनको ठंडा करके, पहले धूप में सुखाओ, अच्छे से सूख गई, फिर प्लेट पे पड़े रहे तो थोड़ा ठंडा हो गया, एंड देन वी कैन एक्चुअली अलाउ टू कूल, एंड देन बॉटल्ड में या टाइट लिड्स में, इन कंटेनर्स में इनको करना होता है। एंड अगर हम रूट्स एंड ट्यूबर्स की बात करें, जैसे पोटैटोज, अनियन को भी हम स्टोर करें, उसको हमने कूल ड्राई एयरी स्पेसेस में, क्योंकि अगर वो टाइट हो जाते हैं और मॉइस्चर आ जाता है, क्योंकि इनमें भी अपना वाटर कंटेंट होता ही होता है, तो इसमें ना मोल्स ग्रो कर जाते हैं। ठीक है। और इसमें क्या करते हैं हम, एक ना वायर्ड मेश टोकरियां सी आती हैं, उसमें डाल के लटका के, ताकि एयर पास होती रहे इनमें से। ठीक है। एक्सपोज टू सर्कुलेशन और कूल स्पेस। नट्स का क्या करते हैं हम कि नट्स जो है ना बहुत इजीली रेंसिड हो जाते हैं नट्स में, क्योंकि ऑयल्स होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स। ठीक है। और इंसेक्ट्स भी इसको पकड़ लेते हैं, खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और लार्ज क्वांटिटीज में हम इनको नहीं लाएं तो ज्यादा अच्छा है। नट्स को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में लाओ, और प्लास्टिक बैग्स में, रेफ्रिजरेटर में भी हम इनको सेव करके रख सकते हैं किसी साइड पे। ठीक है। फ्रूट्स हैं, जो एप्पल्स हैं, ऑरेंजेस हैं, सेमी राइप मैंगोज हैं, वो कुछ फ्यू वीक्स तक रह सकते हैं, ज्यादा नहीं होता। बाहर बास्केट में रख सकते हो, उसको कवर्ड कर दो पेपर से, टिश्यू पेपर से, ड्राई करके रखिए इनको। ठीक है। बस इतना ही है इनका, और जो वीक्स तक रहती हैं। एंड स्टोरेज ऑफ द पेरिशेबल, अब पेरिशेबल जो बिल्कुल ही बहुत जल्दी स्टोर है, 2-3 घंटे में ही खराब होने शुरू हो जाते हैं, इनके एंजाइम्स भी इनको खराब करना शुरू कर देते हैं, इनके जो अंदर भी होते हैं। तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स में ही ये यूज होते हैं, ताकि लो टेम्परेचर हो इनके लिए। इसका एक ही इलाज है, बनाया बहुत ज्यादा देखभाल नहीं। इसमें क्या आता है, मिल्क प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स आ जाती हैं, कुक्ड वेजिटेबल्स भी आ जाती हैं। ठीक है। सो इन चीजों में आप इनको स्टोर करके रख सकते हो। इवन कट वेजिटेबल्स हैं, कट फ्रूट्स हैं, उनको भी बीच में ही, अगर फुल फ्रूट्स हैं देन ऑल्सो यू कैन एक्चुअली इनसाइड। ठीक है। मिल्क प्रोडक्ट्स तो बहुत ही पेरिशेबल होते हैं, बिल्कुल ही बाहर नहीं है, विंटर्स में भी नहीं बाहर रख सकते, 1-2 घंटे के लिए है, उसके बाद बॉयल करके रखना पड़ता है आपको। और इन चीज़ों से बिल्कुल ही पेरिशेबल हैं। ठीक है। कुछ चीज़ें आप शेल्फ पे भी रख सकते हैं। ठीक है। कुछ एरी होनी चाहिए, बट दीज आर दी सम कंडीशंस विच यू कैन एक्चुअली से कि हमें फूड्स को बचा के रखना है इनसे। ठीक है। So this was quite a lengthy topic, in which we have discussed about the contamination, different kind of the contamination, microorganisms और enzymes का कैसे होता है, digestion पे क्या effect पड़ता है, storage of the foods है, kind of the storage, kind of the I mean foods on the basis of the storage, ये हमने पढ़ा है आज. So this was quite a lengthy one, which I have explained, and I hope that you must have understood all these things. Okay.
So please kindly go through this chapter. This is quite an easy chapter, ऐसा नहीं है. अब सब हमने कर लिया, तो just read out that chapter so that you can keep the things. So just categories हैं, ठीक है, पेरिशेबल की हैं, स्टोरेज के बेसिस पे हैं, एंजाइमेटिक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ बेनिफिशियल हैं, कुछ बेनिफिशियल नहीं है, एंजाइमेटिक बेस्ड फ्रूट आइटम्स हैं, क्या क्या होता है इनसे, यू कैन एक्चुअली सी दैट. ओके, तो आप एक बार अच्छे से चले जाएंगे, सो यू वुड बी गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट, बिकॉज दिस चैप्टर वाज नॉट वेरी टफ, बट इट टुक टाइम जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, बिकॉज आगे आगे चैप्टर्स टफ होते जाएंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, जो विच नीड मोर अंडरस्टैंडिंग एंड मोर ग्रास्पिंग एंड द रिविजन टू. आप अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ओके, तो आज का चैप्टर आज ही पढ़ लेना, या कई लोगों ने, मैंने देखा था ग्रुप में कि कई लोग पहले से पढ़ना चाह रहे थे, कई लोगों ने जिन्होंने पहले से पढ़ा है, दे माइट हैव बेनिफिटेड. ओके, सो मे बी, ठीक है, सो आई विल बी क्लोजिंग दिस चैप्टर. मैम, यस यस, मैम एक जस्ट क्वेरी थी मेरी छोटी सी. एक्चुअली आई एम मेकिंग द असाइनमेंट्स. वहाँ पे क्वेश्चंस आया था कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर. उसमें उनके फंक्शंस, उनके डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीजें हम लोगों ने उसमें जो है वो लिखनी है. तो हमारे पास जो बुक में हम लोगों ने रीड आउट किया है उसमें अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं और नॉन अवेलेबल भी हैं. तो हम लोगों को दोनों का फंक्शन और वो सब चीजें बताना पड़ेगा, और दैट इज 3 मार्क्स क्वेश्चन ओनली. तो उसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा कैटेगरीज आप लिखिए, अवेलेबल, नॉन अवेलेबल, थोड़े एक एक दो लाइनें. जब मार्क्स के ऊपर तो डिपेंड करता था लेंथ ऑफ द आंसर. ऑब्वियसली आप वैल्यूएबल आंसर्स लिखिए जो हैं, और उसमें थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए उसको, एक एक दो लाइंस में. लेंथी होगा तो यू हैव टू एक्सप्लेन इन पेज. अगर लेंथी होगा तो वो पूरा आ जाएगा, जैसे हम लोग पूरा उसमें पढ़ रहे हैं ना. और अगर मार्क्स है तो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, पर जो करना हम लोगों को दोनों में है, अवेलेबल और नॉन अवेलेबल दोनों. ठीक है, थैंक यू. ओके. हेलो मैम, वो व्हाट्सएप ग्रुप में इंक्लूड नहीं हुआ मेरा नाम. अभी यहीं पे होता है ग्रुप. प्लीज काइंडली सेंड अ मैसेज कर दीजिए. ग्रुप का जो लिंक है बच्चों ने ही किया है, ठीक है. एक मिनट मैम, आई डोंट नो हाउ टू डू इट. No, whether I am admin in that, only then I can add into that group. Yes ma'am, you are admin. मैंने उसी दिन आपको भी कर दिया. Okay. Then I can actually, then I'll going to add. Okay. हाँ मैम, प्लीज कर दीजिए. मैम पर लिंक है ना, लिंक को क्लिक करके आप ज्वाइन कर दीजिए ना. एक मिनट मैम, एक चीज पूछनी थी. मैम जैसे अभी जामुन का सीजन है, जामुन खूब अवेलेबल है अभी मार्केट में, तो उसको ये बोला जाता है कि जिनको शुगर है वो जामुन खाते हैं, उनके लिए सही रहता है वो. तो मैम उसके जो बीज हैं, गुठली हैं जामुन के, तो उसको भी पाउडर फॉर्म में हम रख सकते हैं, जिसको बाद में खाया जा सकता है जिस टाइम पे हमको जामुन नहीं मिलता. तो मैम उसको कैसे प्रिजर्व करना चाहिए? ड्राइड है, आपको ड्राई करना है पहले, पाउडर्ड फॉर्म है बनानी है फिर से, क्योंकि अगर आप ड्राई नहीं करेंगे तो पाउडर्ड फॉर्म में वो वैसे भी नहीं आएगा. सो वैसे भी नहीं बनेगा पाउडर्ड फॉर्म में, ग्राइंड ही नहीं हो पाएगा. पहले प्रॉपर्ली गिटकों को, आप जो सीड्स हैं उसके, उनको ड्राई कीजिए एंड देन ग्राइंड कीजिए एंड देन कंप्लीटली ड्राई कीजिए. देन कूल करना मत भूलिए, बिकॉज अगर कूल नहीं करेंगे और टाइट कंटेनर में डाल देंगे देन द मॉइस्चर वुड बी देयर, क्योंकि हीट से मॉइस्चर आ जाएगा थोड़ा सा भी, ठीक है. पहले प्रॉपर्ली ड्राइंग है, देन ग्राइंडिंग है, देन फिर ड्राइंग है, एंड देन कूलिंग है, एंड देन टाइट कंटेनर. हाँ मैम, इसीलिए वो खराब हो जाता था इससे पहले कि पहले ड्राई करते थे, फिर उसको ग्राइंड करते थे, फिर उसको टाइट कंटेनर में रख दिया जाता नहीं, था. फिर से ड्राई कीजिए, फिर कूल भी कीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी लेके आइए. अच्छा. हाँ, तो मैम कूल करना है तो उसको फ्रिज में कुछ दिनों के लिए रख दें, ऐसे कि बाहर ही रखें? नो, बाहर रखो आप उसको. बट कंटेनर शुड बी टाइट, एंड बाहर धूप में भी अगर आप उसको ड्राई किया है तो आप उसको फिर कंटेनर में ड्राई करके पहले थोड़ी देर ठंडा कीजिए नॉर्मल टेम्परेचर के रूम पे लाके, एंड देन फिर आप उसको स्टोर कीजिए.
ठीक है जी। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके जी, ओके, थैंक यू so much for attending the मैम class. We'll मैम meet अपने tomorrow at the ग्रुप same time, 6 o'clock. मैम Hopefully we'll be going to discuss the more topics and then मैम हाँ जी भावना जी, कौन बोल रहा मैम है? ग्रुप में मैंने लिंक डाला है, जिसको हाँ भी जी, ऐड करना हो संध्या तो मैम को मैं ऐड कर दूंगी अगर नहीं भी हो पाएगा, अदरवाइज she'll be going to हाँ थैंक यू मैम। अभी ओके लिंक जी, डाला है मैंने इसी ग्रुप में, व्हाट्सएप इसी ग्रुप में आप देखिए, फिर ज्वाइन कीजिए जिसको भी करना है। ठीक है। ओके जी, थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द क्लास। ओके जी, we'll meet tomorrow. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। आपके इसमें दिखाई देगा, उसमें मैसेज आएगा, आपको उस ग्रुप से मैसेज आएगा। क्लिक नहीं, अब कीजिए, मैंने उसमें क्लिक कीजिए, आप जो मैंने लिंक डाला है ना अभी, क्लिक कीजिए, हाँ, फिर मैंने ज्वाइन उसमें कर लीजिए। मैसेज भेजा है, मैंने मैसेज भेजा है उसमें। नहीं, आप हाँ लिंक पे क्लिक करो। अभी जो हमारा ये ग्रुप है ना, इसमें मैसेज आया है आपका, हाँ जी, जिसमें मीटिंग चल रही है, हाँ जी। उस पर क्लिक कीजिए, फिर ज्वाइन कर दीजिए। हो गया? एक मिनट मैम, मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने तो मैसेज भेज दिया है आपके पास। मेरे पास मैसेज भेजा है आपने? हाँ जी, जो मेरे जो आपने मेरे लिंक तो जो भेजा था ना, उस पे मैंने मैसेज भेजा है। नहीं, वो लिंक में तो आपका 399 पीछे से आपका नंबर है। नहीं जी, 9418070303। नहीं तो अभी आप इस ग्रुप में देखिए ना, चैट का ऑप्शन खोलिए आप, ग्रुप चैट का, चैट इन कॉल आएगा आपको। 399 is my इन number, कॉल ma'am. मैसेज क्लिक I just कीजिए। joined in the group. हाँ Thank you. चैट पे कॉल करना। इन कॉल मैसेज आया, आपने देखा? उस इन पे कॉल क्लिक में, कीजिए, हाँ जी उसमें है जी, एक व्हाट्सएप लिंक, मैं फिर से डाल रही हूँ, हाँ अभी जी आप जी, देखिए। मैंने भेजा है जी, मैंने उसमें मैसेज भेजा है। हाँ अभी अभी मेरा आया है ना फिर से मैसेज, उस पे क्लिक कीजिए। हाँ जी, भावना मैम, एक आप मिनट एक दीजिए। काम और भी कर सकते हैं कि आप अपना नंबर, इनका नंबर आपके पास सेव कर लें और फिर आप खुद इनको ज्वाइन ऐड कर सकते हैं। हाँ वो तो पता है, लेकिन ये लिंक से इजी है ना, आप क्लिक करो लिंक को और ज्वाइन करो। ये तो मैम मैंने कर दिया, अब इसमें ज्वाइन ज्वाइन ग्रुप। हाँ ठीक है, आ गया ना, हाँ आ गया ठीक है, अभी आपका ठीक है जी, 303 ठीक है है, ना ठीक आपका है। पीछे से नंबर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक हाँ है, ठीक है, ठीक है। अभी आप ज्वाइन हो गए हो। ओके, थैंक यू मैम। ओके नो प्रॉब्लम, बाय एवरीबॉडी। बाय बाय, थैंक यू। चलो हो गया। पापा कहाँ गए? पापा शेयर करेंगे।